لوگ تیرے اوپر 60 لگاتے ہیں، اور جب اللہ 60 لگا دے نا، یعنی 60 سے مراد میرا اللہ کسی کا رزق بند کر دے، صحت بند کر دے، دولت بند کر دے، عروج بند کر دے، پھر اس کو کوئی نہیں کھول سکتا سوائے اللہ کے۔ ساری دنیا کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، خزانوں کی بھی، بندشوں کی بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ جس کے لیے چاہے کھول دے، اس کو کہتے ہیں باسط، بسط۔ اور اللہ جس کے لیے بند کر دے، اس کو کہتے ہیں قابض۔ اللہ جس کے لیے منع کر دے، اس کو کہتے ہیں مانع۔ اس کے پاس ہے، بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، نیچے سے نہیں ہوتے، اور فیصلے عرشوں سے ہوتے ہیں، فرشوں سے نہیں ہوتے، عرشوں سے ہوتے ہیں، فرشوں سے نہیں ہوتے۔ آئیں آج کوئی ایسی ترکیبیں، تدبیریں، کوئی ایسا نظام ڈھونڈیں جس سے عرشوں سے کوئی رزق، وسعت کے، برکت، دولت کے، عطا، صحت کے، کرم کریمی کے کوئی دروازے کھولیں۔ آج ہماری تیسری جمعرات ہے حضرت سیدہ نفیسہ طاہرہ کی۔ آج اختتامی جمعرات ہے، اور اس میں دعا بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے۔ لیکن آج کی اس جمعرات سے ہم نفع یہ لیں کہ آج کوئی فیصلہ کریں، کون سی راہیں ایسی ہیں جن راہوں سے رزق کھلتا ہے، وسیع ہوتا ہے، اور اتنا وسیع ہوتا ہے کہ نسل در نسل، نسل در نسل چلتا ہے، اور اتنا وسیع ہوتا ہے کہ نسلوں تک چلتا ہے، اور نسلیں رزق کو کھاتی بھی ہیں، لطف اندوز ہوتی بھی ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں نسلوں میں اللہ پاک ایسے ایسے حالات، ایسی رحمتیں کہ عزت کا لباس، وسعت کا لباس، برکت کا لباس اور خیر کی راہیں نسلوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کون سی راہیں ایسی اختیار کی جائیں، کون سے راستے ایسے اختیار کیے جائیں، اس کو سوچیں۔ آج کچھ موتی ہیں، مجھے بھی جھولی میں بھرا ہوا چاہیے موتی، اور وہ موتیوں سے میری جھولی بھی بھری ہوئی چاہیے، آپ کی بھی۔ آج ذرا چوکنے بیٹھیں گے، متوجہ بیٹھیں گے، فکر مند بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں رزق چھنتا کب ہے، نسلوں سے ضائع کب ہوتا ہے، رزق چھنتا کب ہے، نسلوں سے ضائع کب ہوتا ہے۔ ایک فقیر کی بات یاد رکھیے گا، کہا جس کو غریب دیکھو اس میں 3 چیزیں تلاش کرو۔ بندہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میرے گھر میں رزق، روٹی، برکت اور بخت نہیں ہے، تو 3 چیزیں تلاش کرو۔ سب سے پہلے، کیا وہ بد مزاج ہے، متکبر، بد مزاج؟ دوسرا، بد دیانت ہے۔ تیسرا، سست، کاہل، جس سے حضور نے پناہ مانگی۔ بس 3 چیزیں تلاش کرو اس کے اندر۔ اگر پوری تلاش کے بعد ایسے نہیں، یا سفر کرو یا اس سے واسطہ پڑے، پوری تلاش کے بعد دیکھو کہ اس میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، سست نہیں ہے، ذمہ دار اس کے مزاج میں احساس مندی کا جذبہ ہے، سست نہیں ہے، بد مزاج نہیں ہے، اور بد دیانت نہیں ہے۔ بد دیانتی ضروری نہیں مال کی ہو، وقت کی بد دیانتی، چیزوں کی بد دیانتی۔ کام تو 1 گھنٹے کا تھا، کرتا 5 گھنٹے میں ہے، اور کہتا ہے میں تو دیانت دار ہوں۔ جو ذمہ داری اس کو دی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ساری اسی میں آتی ہیں۔ 3 چیزیں ایک فقیر نے بات کہی، کہا کہ میں نے نچوڑ نکالا ہے۔ 3 چیزیں جس بندے کی دیکھو، اس بندے میں دیکھو کہ 3 چیزیں ہیں اس میں۔ 3 چیزیں۔ پہلی، بد مزاج ہے، بد دیانت ہے، اور سست اور کاہل ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، بار بار دیکھنے سے
اور کہنے والے نے کہا کہ 70 دفعہ دیکھو، اگر 70 دفعہ بھی نہیں ہے سمجھ لو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، اللہ نے تھوڑے رزق تھوڑے مال میں دے کے اس کو دنیا کا غریب آخرت کا امیر بنانا ہے۔ دنیا کا غریب آخرت کا اللہ نے اس کو امیر بنانا ہے، مالدار بنانا ہے آخرت کا۔ پر یہ ہے بہت کم، بہت کم ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ چیز ہو، ورنہ تینوں میں سے کوئی چیز کہیں سے کوئی مار کھا جاتا ہے، تینوں میں سے کہیں بھی کوئی مار کھا جاتا۔ ایک سفر میرا ہوا تو ایک صاحب نے اپنی غربت کے بہت واقعات سنائے، دوسروں نے بھی تصدیق کی کہ ہم اس کو سالہ سال سے جانتے ہیں، آپ کوئی وظیفہ تسبیح اس کے لیے عمل کر دے۔ میں سنتا رہا، میں نے کہا 3 چیزیں میں اس میں پرکھوں گا۔ ہمارا سفر تھا ٹرین کا، اور ٹرین کی اکانومی کا سفر تھا۔ کھڑکی کھولتے تھے تو لو آتی تھی اور مٹی آتی تھی، گرمی تھی، اور سفر بھی کوئٹہ کا تھا، لاہور سے کوئی 27-30 گھنٹے کا سفر، اور کھڑکی بند کرتے تھے تو حبس ہوتی تھی، کوئی کہتا بند کرو، کوئی کہتا کھولو، ہر مزاج ہر طبیعت کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب میں اس کو دیکھتا رہا یہ کیا کرتا ہے، ہر بندے سے تھوڑی دیر کے بعد الجھ پڑتا تھا۔ تمہیں خیال نہیں آ رہا کہ مٹی آ رہی ہے، دھول آ رہی ہے، کھڑکی بند کرتے ہیں؟ وہ کہتا تھا کہ میری کھڑکی ہے، ٹرین اکیلی تیری ہے، میری بھی تو ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد بندوں سے الجھتا تھا۔ ایک بات، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی خدمت تھی تھوڑی سی، وہ خدمت اس کو بھول جاتی تھی، احتیاطاً اس کو بھول جاتی تھی، بھائی وہ آپ کے ذمے وہ تھی، ہاں ہاں وہ کرتے ہیں، میں ذرا نہ تسبیح کر لوں، مسواک کر لوں، بھائی تسبیح مسواک بھی عبادت ہے، خدمت بھی تو عبادت ہے۔ سفر میں جب ہم 30 گھنٹے کے بعد کوئٹہ پہنچے، میں نے اسٹیشن پہ ان بندوں سے کہا، میں نے کہا یہ اللہ چاہے تو مالدار ہو سکتا ہے، اسباب نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، تو بندے تو قادر ہے نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، بندے تو قادر نہیں۔ میں کہا اللہ چاہے تو یہ مالدار ہو سکتا ہے، خوشحال ہو سکتا ہے، اس کو وسائل مل سکتے ہیں، ورنہ کوئی اسباب نہیں اس کے مالدار ہونے کے۔ کہنے لگے آپ تو دعا نہ، بد دعا نہ کریں۔ میں کہا یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تو دیکھی دنیا کے تجربات ہیں، بد دعا کہاں ہے؟ رزق چھنتا کب ہے؟ جب اللہ جسم دے اور نعمتیں دے، ان نعمتوں کو ضائع کرے۔ توفیق نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔ میں اب پہلی نعمت گننا شروع کر رہا ہوں، اب گنتے جائیے گا۔ سب سے پہلی جو نعمت ملتی ہے وہ توفیق ہے، چل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ہاتھ اس کے جسم بازو حرکت کر سکتے ہیں، یہ توفیق ہے، یہ توفیق ہے۔ اس توفیق کو اگر استعمال کر لے، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو عبادت تسبیح فلاں اعمال فلاں خدمت فلاں غریب پروری فلاں چیز نہیں لایا، تو اللہ پاک سے کہتے گئے اللہ تو نے توفیق نہیں دی، تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تو نے نیت کی تھی جو میں نے تجھے توفیق نہیں دی؟ کیا تو نے نیت کی تھی؟ اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا، تو نے نیت ہی نہیں کی، میں نے توفیق کہاں دی؟ توفیق کو استعمال کرے، اللہ نے جو دی ہے، اللہ نے جو دی ہے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو ایک بندے نے پوچھا، بندے کچھ بیٹھے تھے تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا نحن متوکلین، ہم متوکل ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اٹھایا درہ اور ان کو جو مارا، کہ اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کی نماز پڑھ کے نکلو، روزی تلاش کرو، تم کہتے ہیں نحن متوکلین؟ محنت کرو، مزدوری کرو،
कोशिश करो, फिर तवक्कल करो, फिर तवक्कल करो। मुझे एक दरवेश ने बताया कि कुछ लोग अपने बिस्तर पे, कंधे पे बिस्तर होता था, एक मोटा सा पत्थर उसके अंदर होता था, बड़ा सारा पत्थर। वो दिन को रोजा रखते, रात को इबादत करते, और कहते एक वक्त आएगा ये पत्थर जो है सोने का बन जाएगा। अल्लाह ने किया, दुनिया में वाकयात हैं, लेकिन ये अमूमी चीज नहीं है। अल्लाह ने कहा गंदम बोएगा तो गंदम वो काटेगा, और पानी डालेगा तो फसल होगी। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। हमारे यहाँ एक साहब थे, खिदमत करते थे, 17 साल खिदमत की। वो कहते थे एक वक्त अन करीब आने वाला है, और फिर आयत पढ़ते थे इन्नमल उसरि युस्रा, कि ये बंदा होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरी गाड़ी का यूं एक दरवाजा खोलेगा और मैं गाड़ी में बैठूंगा, और उसके अंदर वो तीनों चीजें मौजूद थी जो मैंने बयान की, बदमिजाजी, बददियानती और सुस्ती काहली। एक बंदे को आखिर मैंने हाथ से पकड़ लिया, मैं खबरदार इसके साथ तो चला। तो वो आधा घंटा 20 मिनट वजू करता था, पानी जाय करता था, कर रहा है वजू, कर रहा है वजू, कर रहा है वजू, मैं खबरदार इसके साथ दोस्ती ना कर। तौफीक का इस्तेमाल सबसे पहले अगर किसी ने कर लिया, तौफीक, तौफीक। बैतुल खला में गया, एक साहब कहने लगे मेरा बेटा है, बैतुल खला में जाता है, मैं बैठ के रोता रहता हूं, दुआएं मांगता रहता हूं कि मेरा मौला बैतुल खला की इसको पेशियां ना दिलवा। जो ज्यादा वक्त बैतुल खला में गुजारेगा, याद रखिएगा बैतुल खला में मैग्नेटिस लगे हुए हैं, ताकतवर। परमूदा ट्रायंगल में कहते हैं कि नीचे मैग्नेटिस है, मुख्तलिफ ताकीक, एक ये भी है, इतने बड़े हैं, जो लोहे की चीज जाती है उसको नीचे खींच लेती है और वो गुम हो जाती है। बैतुल खला में मैग्नेटिस लगे हुए हैं, शैतानी, क्योंकि वहां पूरा घराना रहता है खुबस और खबाइस का, जिन्नात और जिन्नियों का मैग्नेटिस है, वो बंदे को बहलाते हैं। उस दिन मेरे पास एक केस आया, सारा घराना बैठा हुआ था, उनके घर का बच्चा 19 साल का, कहने लगे ये चाय और खाना भी बैतुल खला में खाता है, और इतना घंटों रहता है, दरवाजे तोड़ते हैं, फिर एक टॉयलेट से निकल के दूसरे टॉयलेट में, दूसरे से निकल के तीसरे। वो वालिद मुझे कहने लगा मेरा बेटा बैतुल खला में ज्यादा वक्त गुजारता है, अगर उससे कहीं उलझता है, कहाँ बैठ के मैं रोता रहता हूं, अंदर ही अंदर दुआएं पढ़ता रहता हूं कि अल्लाह मेरा तो हीरा है, बैतुल खला इसको खा जाएगा, इसको बैतुल खला खा जाएगा। तौफीक दी अल्लाह ने बाहर निकलने की, करने की, ये तौफीक का इस्तेमाल मैं बता रहा हूं। अगर तौफीक का इस्तेमाल ना किया, अल्लाह नेमतें छीन लेगा। उस नेमत में एक रिस्क है, छीन लेगा अल्लाह छीन लेगा, अल्लाह नेमतें छीन लेगा। दूसरी नेमत बताऊं, वो है रिस्क की नेमत। पानी रिस्क, बिजली रिस्क, कपड़ा रिस्क, जूता रिस्क, ये सारी नेमतें रिस्क की नेमतें हैं, रिस्क की नेमत है, रिस्क की नेमत, ये सारी नेमतें रिस्क की नेमतें। जो रिस्क को जाया करता है, अल्लाह उसकी नस्लों में से रिस्क छीनने का फैसला करता है। मैंने हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से खुद सुना, फरमाते थे एक वक्त था कि बांग्लादेश में चावल और मछली खूब पकाई और खाई, और थोड़ी खाई, बाकी सारी कूड़े के ढेर में डाल दी। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने कूड़े के ढेर से उठा के खिलवाया, और फिर एक वक्त आया अल्लाह ने उनके बड़ों को तौबा की तौफीक दी, रब ने रिस्क वसी कर दिया, रब ने रिस्क वसी कर दी। नेमतें, जैसे कि अल्लाह पाक ने नेमत दी है, और एक बंदा अपनी इस जिस्म की नेमत को बैतुल खला में ज्यादा वक्त लगा रहा, किया 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 और किया। कहता मैं अभी गया था, मेरे पास ये बैतुल खला में ज्यादा जाने के केस बढ़ रहे हैं, मेरे पास 3-3 दिन बैतुल खला में रहने के वाकयात हैं, 8-8 दिन रहने के वाकयात हैं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है ना, मैग्नेटिस खींचता है इसको,
آہستہ 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 شروع ہوتے ہوتے پھر اس کو وہاں دل بہلتا ہے، دل بہلتا، بہت رزق چھن جاتا ہے، اس کی صحت چھن جاتی ہے، اور بیت الخلاء میں زیادہ وقت گزارنے والے کی عقل چھن جاتی ہے، اس میں ضد آتی ہے، اس میں چچڑا پن آتا ہے، اس میں پھر الجھاؤ آتا ہے، پھر وہ الجھا کے لوگوں کو خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہنے لگا تسبیح خانے میں آ کے مجھے ایک توبہ کی توفیق ہوئی، کہا کیا؟ کہا اچانک میں لوگوں کو گراتا تھا، آگے کسی کی ٹانگ دے دی، کسی کی کرسی کھینچ لی، مجھے لطف آتا تھا، لوگ زخمی ہوتے تھے، چیختے تھے، پریشان ہوتے، مجھے لطف آتا تھا۔ اس کو پھر لطف آتا ہے، وہ سارا روگ بیت الخلاء سے شروع ہوتا ہے، وہ سارا روگ بیت الخلاء سے شروع ہوتا ہے، سارا روگ۔ آپ تجربے کر لیں، بیت الخلاء میں میرے پاس واقعات، ایک کوئٹہ سے میرے پاس ایک بوڑھی اماں لے کے آئے، کہا سخت سردی ہوتی ہے، اماں بیت الخلاء سے باہر نہیں نکلتی، اب ہم نے بیت الخلاء کو تالا لگا دی ہے، اب سخت سردی میں اماں کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، استنجا کرتی رہتی ہے، استنجا کرتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے۔ کوئٹہ کی سخت سردی، برف، وہ بیت الخلاء میں پہلے تھوڑا تھوڑا جانا شروع ہوئی، تھوڑا 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 تھوڑا، بس اس نے پھر کھینچا مقناطیس نے، ایسا کھینچا کہ بس۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ لطیفہ سناتے تھے، وہ کہتے تھے ایک مئی جہاز میں سفر کر رہی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بیت الخلاء میں جاتی، ٹوائلٹ میں جاتی، کہتی وہاں کے ٹوائلٹ کی سیٹ بڑی آرام دہ ہے، لطیفہ سناتے تھے، آرام دہ ہے جہاز کی سیٹ سے۔ رزق اور نعمتیں جب ضائع کرنا شروع کر دے گا، سخت گرمی تھی، محلے کی دکان تھی، کبھی کبھار گزرتا ہوں تو وہ دکان اب ختم ہو گئی ہے، تو چھوٹا سا پنکھا ہوتا تھا پہلے نیچے، چھوٹا سا پنکھا جس کا چھوٹا سا سٹینڈ ہوتا تھا، سونے والے بندوں کو ہوا دیتا تھا، تو چھوٹا سا پنکھا لگا ہوا تھا، تو وہ دوپہر کو سو رہا تھا، کڑکتی دھوپ تھی، ایک صاحب تھے تو ان کے گھر کے قریب سے گزرا تھا، ایک اماں بوڑھی سخت گرمی میں ٹوٹی پھوٹی جوتی اور حال سے بے حال، اس وقت وہ مائی 70 سے اوپر تھی، میرا وجدان اگر ٹھیک کام کر رہا تو ابے اس کو آوازیں دے رہی تھی، تو مجھے ترس آیا، پریشان ہوا، کھڑا ہو گیا، روپے کے اس نے پاپے لیے، رس لیے، یہ جو بکری کے ہوتے ہیں، یہ دے دے، کیوں کھائے گی؟ اس نے کہا آج میں صبح طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بچوں کو سکول نہ بھیج سکی تو بہو نے مجھے روٹی نہیں دی، بہو رات کو دیر سے سوتی ہے، دیر سے اٹھتی ہے، بچوں کو تیار کرنا میرے ذمے ہے، سکول بھیجنا، بوڑھی ہوں، بیمار تھی، خوراک نہیں ملتی، طبیعت خراب تھی، بچوں کو سکول، یہ روپیہ میں نے چھپا کے رکھا تھا۔ اس نے پوچھا ماسی کتنا کھاسیں، کس چیز سے کھائے گی؟ کہا بیٹا پانی میں ڈبو کے کھاؤں گی۔ ایک زندگی کا رخ یہ ہے، آئے میں اس خاتون کا اگلا رخ دکھاتا ہوں، یہ وہ بھتیجی بیاہ کے لائی تھی کسی دوسرے شہر سے، یہ سگی بھتیجی تھی، بہو سگی بھتیجی تھی، جوبن تھا، عروج تھا، میں نے اس کے شوہر کے دکان دیکھی تھی، اس وقت میں چھوٹا تھا، اور اس میں سونے کے ڈھیر ہوتے تھے، رش ہوتا تھا، ایک دفعہ اس نے لگا لیا شیشہ دکان کے آگے، دیکھا ایک دیہاتی آیا، اس نے شیشے کو دیکھا تو اس نے پہلے زور دیا، پھر اس نے زور سے کندھا مارا، ہاں شیشہ کیا، وہ اندر نکل آئے، اس نے کہا میں نے سمجھا کوئی چیز کیا ہے، وہ شیشہ پہلے یوں دیکھا نا، اس کو یوں زور کیا، دروازہ کھلتا تھا، اندر باہر وہ زور دے رہا تھا، دروازہ تو اور بند ہوتا، پھر وہ اطراف سے آیا، ادھر بڑا شیشہ لگا ہوا تھا، تو پھر اس نے آ کے نا زور سے کندھا مارا، پیچھے گیا، پیچھے جا کے پھر زور سے کندھا جب مارا، شیشہ ٹکڑے ہو گئے، آخر اس نے شیشہ اتار دیا، سب ختم کر دی۔ 100 کلو کی بوری ہوتی تھی آٹے کی، یاد ہے 100 کلو کی بوری ہوتی تھی، جسم کمزور ہوتے گئے تو بوریاں بھی چھوٹی ہوتی گئی، آٹے کی تھیلی 10-20 کلو کی ہوتی کہاں تھی، 50-100 کلو کی بوری ہوتی تھی، اور
एक चाचा होता था खोता रेडी वाला, गधा रेडी वाला, हमारी भी बोरी लाज के चक्की से पिसवा के लाता था। मोहल्ले का काम यही होता था। नीचे 5-10 किलो जब आटा होता था तो वो कहती थी इस आटे में अब नमी हो गई है, तो चाचे को कहती थी इस आटे को फेंक देना और बोरी ले जा। दूध रात का बचा हुआ वो कहती थी खराब हो गया, इसको फेंक दो। चारपाई से सर लटका के उसकी खादमाएं नीचे टब रख के उसका सर दूध से धोती थी कि बाल रेशमी होते हैं, और वो दूध नाली में जाता था, सीवरेज में जाता था। नियमतों की बेकदरी की इंतहा थी। अय्याम गुजरते गए, तारीख नवश्तों में लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई। एसीआर रिपोर्ट ऊपर की बनती गई, तरक्की की रिपोर्ट, नाकामी की रिपोर्ट बनती गई, बनती गई, बनती गई। बेटा जवान हो गया, शादी, तो कहा मैं अपनी भतीजी लाऊंगी। शौहर के साथ कुछ इख्तलाफ, वो कहता था वहां नहीं, दूसरे शहर से भतीजी लाई और उसको भतीजी को दिया। फिर एक वक्त आता था कि उसकी चारपाई छोटी होती थी, पांव लटकाने में पूरी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगी। मुझे एक साहब ने नसीहत की। मैं कॉलोनी टेक्सटाइल मिल मुल्तान, पाकिस्तान जब बना था तो ये पाकिस्तान के हिस्से में यही एक टेक्सटाइल मिल आई थी। उसके बाद पाकिस्तान पूरे में टेक्सटाइल मिल बकौल उनके नहीं थी, वो कॉलोनी टेक्सटाइल मुल्तान। तो कहने लगे कि मुझे एक साहब ने नसीहत की, कभी छोटी चारपाई पे न सोना, कभी बगैर मुंडेर की छत पे न सोना, कभी ऐसी जूती ना पहनना जो छोटी हो जिसमें आगे अंगूठे टकराएं। और तीसरी नसीहत भी मुझे याद आ जाएगी, 4 नसीहतें थी। नेमतों को जाय करते करते रब ने बहू की शक्ल में एक चंगेज खान दे दिया, उसको हलाको खां दे दिया, बहू की शक्ल में। नेमतें जाय करते 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 बुढ़ापा उसका बहुत कस्मा पुरसी में गुजरा, बहुत ज्यादा कस्मा पुरसी में बुढ़ापा गुजरा, हद से ज्यादा कस्मा पुरसी में उसका बुढ़ापा गुजरा। और इसी हाल में वो कफन लपेट के चली गई, इसी हाल में। हमारे एक पड़ोस में एक खातून थी, उसके चारों अतराफ में शीशे लगे हुए होते थे, पूरा नक्शा मेरे सामने आ गया, जिसके जनाजे की मैंने एक कैफियत भी बताई थी कई बार, आज फिर बताऊंगा कि वो उसमें देख के अपने कुछ रक्स करती थी, रेडियो लगा के उस दौर में। और वो दूध खास अंदाज का पीती थी, 5 किलो दूध 3 किलो करते करते एक प्याली बच जाता था। और उसके अलावा उसके घर के कूड़े का लोग इंतजार करते थे, हैरान होंगे। उसके घर के कूड़े में नई कंघियां होंगी, बच्चों के नए कपड़े होंगे, नई नई चीजें होंगी, गुलदान होंगे। उस दौर में वो खरीदारी कराची से करती थी, ये बात मैं आज से कोई 50 साल पहले की बता रहा हूं, करती थी। हर चीज उसके घर से कूड़े में चली जाती थी, खराब हो गई उठाओ फेंको, ये खराब हो गई उठाओ फेंको। जिस नौकरानी ने फेंका उसका बेटा आज उस घर का मालिक है, आज भी। और फिर उसकी जिंदगी जो गुजरी, आखिरी अय्याम बहुत कस्म पुरशी की गुजरी, बहुत ज़बूं हाली की गुजरी, बहुत तरस की, रहम की गुजरी, नेमतें ज़ाय करते करते। और जिसके बारे में मैंने बताया था कि वालदा का जनाजा था, मुझे अम्मा ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह ने कि फौरन जनाजे पे जाओ। मैं भागा भागा गया कि जनाजे में देर ना हो, तो सारे मुड़ के देख रहे थे जैसे किसी का इंतजार हो। बड़ा बेटा उनका, वो भी देर हो गई। बाद में मुझे पता चला कि वो मां का जनाजा पढ़ना नहीं चाहता था और जल्दी तेज तेज चलते थे, उसका जिस्म भारी था। मुझे आज भी है, मैं उसके साथ चल रहा था और वो जोर जोर से हवा खारिज कर रहा था, जोर जोर से, और उसी हालत में जनाजे में उसने शामिल हो गया। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बेटा आ गया है, आए जनाजा शुरू कर दे। और उसने मां का जनाजा इस हालत में पढ़ा। नेमतें मिली, वो सेहत की नेमत, वो आफियत की नेमत, वो वक्त की नेमत, वो तौफीक मिली। क्या उस तौफीक का 100% नफा ले रहा?
बस ये शर्त है, वरना अल्लाह पाक नेमतें छीन लेता है और छीनते पता नहीं चलता। मैं एक बादशाह के एक बादशाह था, एक वक्त था कि पंजाब का वो बादशाह था, और पंजाब भी वो जो मौजूदा पंजाब नहीं, बड़ा पंजाब का बादशाह था। और उसकी जमीन जागीरें, उसका सब कुछ इतना था कि एक दिन घोड़ी सफर नहीं कर सकती थी, 2 दिन नहीं कर सकती थी, 3 दिन नहीं कर सकती थी। उसके मैंने महल्लात के खंडरात देखे, खंडरात देखे। एक ही बेटा कसमा पुरसी में किसी मुलाजिम के घर रोटी के बहाने आखिर वहीं मर गया। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग का फरमान है, कहा आओ मैं तुम्हें बख्त मिलने का और बख्त छीनने का तरीका बताऊं। तो सारे मुतवज्जे हो गए कि हजरत बख्त मिलता कैसे है। कहा किसी फकीर की महफिल में जा और अदब से जा, ये बख्त मिलने का अंदाज है। और कहा किसी फकीर की महफिल में जा और बेअदबी से बैठ, ये बख्त छीनने का अंदाज है। कोई टेक लगाए, कोई सोए, कोई जमाइयां ले, कोई कैसे करे, कोई कैसे करे, कोई यूं करके बैठे, कोई यूं करके बैठे, फिर कहे जी मैं तस्बीह खाने भी जाता हूं, मिलता कुछ नहीं। कहा आओ मैं तुम्हें बख्त मिलने के तरीके भी बताऊं, बख्त छीनने के तरीके भी बताऊं। किसी फकीर की महफिल में जा और अदब से बैठ, तलब से बैठ। अगला लफ्ज मेरा है, उनका नहीं है। यानी जा और अपना प्याला सीधा कर ताकि बारिश पड़े। और अगर तू बेअदबी से बैठा, बेतलबी से बैठा, बेरगबती से बैठा, ऊँग रहा, सो रहा, टेक लगाया, मोबाइल से मसरूफ फला, तो तेरा प्याला ऊंधा है, उल्टा है। सारी बारिशें हो जाएं, कभी प्याला नहीं भरेगा। जो नेमत है उस नेमत की कदरदानी। आज तस्बीह खाने में आप मुखलिसाना आए हैं, ये नेमत है, इसकी कदरदानी करें और इस नेमत को नेमत समझें। रब नेमत बढ़ा देगा, अता बढ़ा देगा, शफकत बढ़ा देगा। इस नेमत की कदरदानी करें। आप महसूस करें, आप मोबाइल के सामने बैठे, नींद नहीं आएगी, उसमें वीडियो देखें, नींद नहीं आएगी, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, नींद नहीं आएगी, नींद यहां आएगी। तजुर्बा कर ले। क्यों? उसे पता है कि यहां मिलना है, वहां छीनना है। नहीं समझे? एक साहब आंखें बंद की हुई हैं, यूं कर रहे हैं, सर झुका हिला रहे हैं, आंखें बंद हैं, हालांकि ऐसे कर रहे हैं। उन्हें तसल्ली रख दो। और दूसरे लफ्जों में है सब खैरियत से है। एक अफसर गया तो थानेदार से पूछा आज कितनी नफरी है? उन्होंने कहा सर 40 है। तो उसने देखा सारे थे, 4-5 खड़े हैं। उन्होंने कहा सर 30 भगोड़े हैं, इतने छुट्टी पे हैं, इतने मौजूद हैं, इतने सब, हर चीज ओके है। अल्लाह, ऐसे अक्सर जुगा के ना कहते हैं हाँ ठीक है। तस्बीह खाने का इतना बड़ा मजमा, अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह की तलब और तड़प में आने वाला, और झोलियां ना भरे, मुमकिन नहीं। उसकी वजह है कि मैं दूं तो मैं दावा करूं, मैं तो खुद लेने वालों और भिखारी लोगों में से हूं। हम मिलजुल के भिखारी ना, मैंने देखा हमारे यहां एक बंदा था, उनमें एक आंखों से ठीक था, आंखों से ठीक था। वो आगे चलता था, पीछे 3 नाबीने एक दूसरे का कंधा पकड़ते थे। एक माजूर था, वो रेडी होती थी, वो साथ चलता था। चारों मिल के आवाज लगाते अल्लाह ही देगा, बस ये आवाज लगाते थे। एक काफला होता था मांगने वालों का, मैंने खुद देखा। एक आंखों वाला सबको लेके चलता था। तौफीक दी अल्लाह ने, मेरी मिन्नत है। मैं एक साहब के घर गया तो मुझे कमरों में फिराने लगे, हजरत यहां भी दुआ फरमा दे, यहां भी दुआ फरमा दे, यहां भी। तो मैंने अलमारियां खोलता था, हाँ हाँ हजरत यहां भी फूंक मार दे। मैं फिर फूंके मारता था। मैंने कभी इस घर में मेरा हिस्सा कहां है? हजरत जो चाहे। मैंने कहा मैं तो कपड़े लूंगा, कुछ जूते लूंगा। हजरत ये पुराने हैं। मैं कहा यही लूंगा। चादर ले, मैंने कहा चादर बिछाए। चादर ले आए, वो सिंगल शीट थी। मैं कहा ना डबल बेड शीट बिछाए।
और पुरानी पीढ़ियों वो ले आए डबल बेडशीटों में। मैंने कहा जो कपड़े पुराने हैं यहां डालते जाएं, जूते डालते जाएं, माई के कपड़े, ओदे जवान दे कपड़े, बालां दे, बच्चां दे, सब डालते जाएं। कोई बर्तन है हो, हाँ ये पड़े, मैं कह डालते जाएं। एक बड़ी सारी गठरी बन गई जो एक बंदा नहीं उठा सकता था। उसको वो पुराने तरीके से यूं पकड़ के ना यूं बांधा, पुराने तरीके से गठड़ी बांधी, बांध के अब मैंने कहा कहीं मैं जाऊं फिर निकाल ना ले, पहले घर से निकाल। उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल के एक वो गाड़ी थी उनकी, उसका पता नहीं हिस्सा था, मैंने कहा इसमें रखवाओ। वो सब चीजें थी। मैं मदीना मुनव्वरा में था, बाबू उमर इब्न खत्ताब पे अचानक वाकया याद आ। एक साहब मुझे मिले, अस्सलाम वालेकुम। अरे इतने सालों के बाद रो पड़े, चुपके से मदद कर दे। कुछ नहीं है, कई सालों से यहां आए हूं, रोजी नहीं लगी। अब एक जगह मैंने बिस्तर की जगह रखी हुई थी, वो उठा के बाहर फेंक रहे हैं कि निकल यहां से, तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मदद कर दे। मैंने उसकी मजबूत मदद की और एक नक्शा उसका याद आया। उसकी बहनोई की दुकान थी, उसकी बहनोई की दुकान थी, और उसने जो दुकान की एक एक चीज को उड़ाया और इतना लिया, एकदम उसे कहने लगा मेरा जूता पड़ा था उसमें चूहे ने बच्चे दिए हुए। तो कितने अरसे से पड़ा होगा जो चूहे ने बच्चे दिए होंगे? छोटे छोटे बच्चे थे। कहने लगे इसको मार दूं? मैं कहना बच्चे ना मार, बच्चे ना मार। नेमतों को उसने जाय किया, फिर फक्र और गुर्बत ने उस पर छांव कर दी। फक्र और गुर्बत उस पर छांव कर दी। नेमतों को जी भर के सहन की, खाने की नेमत, पीने की नेमत, जूते की नेमत, कपड़े की नेमत, नेमतों को सह किया और जी भर के सह की। मैं एक हज में था, हमारे पास चनियोटी शेख थे। चनियोटी शेख तो बड़े किफायत शार होते हैं, पर वो कोई और थे। एक ही कमरे में थे, 5 का कमरा था, मैं अकेला था। 5 थे, खाते बहुत थे, हंसते बहुत थे, सौरो दिन सूट उतार के ना बेड के नीचे फेंकते थे और निकाल लेते थे, बेड के नीचे फेंकते थे। हम जाने लगे मदीना मुनव्वरा, तो मैं कमरे की सफाई खिदमत मेरे जिम्मे, बैतुल खला वहां के बंदे होते हैं, धोते हैं, वरना नहीं धोते, कुछ पैसे मांगते हैं जो वहां के खिदमत वाले, वो करना। मैंने सूट इकट्ठे किए, मैं कहा ये फलान का नाम, शेख साहब आप छोड़ो, पुराना हो गया, मैला हो गया। उसने छोड़ो, उसने छोड़ो, उसने छोड़ो, सब छूट गए, वहीं छोड़ गए। मैं क्या किसी को दे देते, इन्होंने आना है, उठाना है, डस्टबिन में डाल देना है। अच्छा, हम मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना मुनव्वरा, उनका मेरा तारुफ नहीं था। कहां से आए आप? मैंने कहा मैं, अच्छा क्या करते हैं? मैं पूड़ियां बेचता हूं, हाजमे दियां पक्कियां। अच्छा ठीक है, कुछ साड़ा ही फिक्र करो। एक मोटा था, ऐसे पेट को बचाता था, एदा ही फिक्र करो। मैं कहा खान पीन, कह रहे एदे अलावा कोई गल करो। मैंने कहा खाना पीना, कह रहे इसके अलावा कोई बात करे। अच्छा, वहां एक साहब से थोड़ा सा किसी ने तारुफ कराया, तारुफ थोड़ा सा हुआ। तो तारुफ होने के बाद जब हर बंदे ने अपनी कहानी खोली ना, अपनी कहानी खोली, तो किसी के कर्जे थे, किसी की मर्जें थी, किसी के रोग थे, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का बर्बादियां, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, सबकी मैंने अलहदा सुनी। मैंने कहा सबके लिए वजीफा एक है। कह ये कैसे मुमकिन है? फिर मैंने कहा किसी और से बात करो, मेरी नहीं मानते। कह रहे नहीं आपकी मानेंगे। मैं कहा बैठो। यही सारी बातें मैंने उनके सामने बयान की। जब अल्लाह रिस्क छीनता है, फिर अल्लाह पाक जब रिस्क छीनता है, फिर अल्लाह पाक जल्ला शान उससे नेमतें छीनते हैं, कभी बेटों की, कभी रिस्क की, कभी सुकून की, कभी चैन की, कभी दौलत की। जब रिस्क की बेकदरी होती है, अल्लाह फिर ऐसे नेमतें छीनता जाता है, छीनता जाता है, छीनता। और मैंने उसे वाकयात सुनाए, सुनते सुनते कहने लगे काश ये बात तो आज तक किसी ने ना बताई। मैंने कहा आप जो मक्का के वहां उस टावर के अंदर जो सब कुछ फेंक के आए हैं, मेरी जूते भी, चीजें भी,
बुनियान है, मैली हुई है, फेंक दी। जुराब फेंक दी। जुराब पहन के गए हरम की, वो मिट्टी आते जाते लग गए, फेंक दी। जूते फेंक दिए। फलां ब्रांड के जूते लेने हैं। फिर खाने ले आते थे, बड़े जबरदस्त खाने लाते, थोड़ा सा खा के फेंक देते। मैं इकट्ठा करके बाहर गरीबों को जाके ढूंढता, गरीबों को ढूंढता, उनको खाने दे आता। मुझे कहने लगे क्या तुसा काम किया है, ये हाजी दे जमीनी हाजी अल्लाह दा मेहमान होंदे। मुझे फजाइल बताते। हाँ, अपनी चनोटी जंगली जबान दे विच कहंदे हाजी अल्लाह दा मेहमान होंदे। मेहमान तो बड़ा अजीम होता है। अब ये क्या करते हैं? मैं क्या करा, मेरी आदत है, इल्लत लगी हुई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो ये करूंगा। रिस्क छिन जाता है, सेहतें छिन जाती हैं। हम मीना में बैठे थे, हमारे साथ एक साहब थे, उनके खादिम थे। भूख लगी, सख्त चलते 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 अराफात से सफर घंटों का करते करते भूख लगी, तो डब्बे बेच रहे थे को खाने पीने के। 3 डब्बे ले लिए, एक मेरे लिए, एक उनके लिए, एक उनके खादिम के लिए। खादिम क्या कर रहा था, थोड़ा सा खाता बाकी फेंक देता। गरीब था, निरा गरीब था। मुझे याद है वो अब्दुल हकीम कबीर वाला मुल्तान के इस तरफ था, मुझे उसका इलाका याद, बिल्कुल गरीब था। उसने कहा तू रिस्क ज़ाया कर रहा, तू रिस्क ज़ाया कर रहा है क्या कर? उसके गले पड़ गया। मैं कहा ख्याल कर, वो उसको भी गुस्सा आ गया। मैं कहा चुप कर, हालत आराम में है। वला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, ख्याल कर। कहने लगे रिस्क ज़ाया कर। क्या करता था, थोड़ा सा खाता बाकी फेंक देता, थोड़ा सा खाता बाकी फेंक, अरे नहीं अंदरों कच्चा लगता है। हम हड्डी हड्डी चीज चीज साफ कर रहे होते थे। मैंने उसको कहा आहिस्ता से, उसके सामने मैंने कहा ऊपर से अभी इसकी खुशहाली और वसाइल का फैसला नहीं हुआ। इसने फकीर गरीब मंगता रहता। जिस दिन इसने नेमतों की कदर शुरू कर दी, फिर देख क्या होता। मूसा अलैहि सलाम के पास बंदा आया, कहने मूसा बहुत माल है, ना गिना जाता है, ना तोला जाता है, ना संभाला जाता है। मेरा जी चाहता है एक बंदा हो, ऐसे चलता रहे, टेक वालों को उठाता रहे। वो देख बाबा जी अभी भी गुम है, ओड़े हाय नुकसान हो गया, मैं क्या करूं। या जो अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं वो अल्लाह मुझसे आंखें छीन ले, या फिर एक और आंखें होती हैं चेहरे के अलावा। या तो एक बंदा हो ना, बाबा हो, ऐसे चलता रहे, फिरता रहे, प्यार मोहब्बत से उनको दबाता रहे। आप क्या बात कर रहा था, आप ये देखें किसी की चीनी की बोरी उस पे साइकिल पे हो, अगर फटी हुई हो, लोग कहते हैं आपकी बोरी से हो रही हो। बाइक मोटरसाइकिल की बत्ती लाइट दिन के वक्त अगर चल रही है, लोग इशारे करते हैं, बोलो क्यों? आंखों से वो देख रहे हैं कि इसका नुकसान हो रहा, और मुझे अल्लाह आंखों से दिखा रहा है कि इसका नुकसान हो रहा, और इतना बड़ा हो रहा आप सोच नहीं सकते। क्या करूं? मूसा अलैहि सलाम के पास एक बंदा आया, माल ना गिना ना तोला ना लिखा, बस इतना ज्यादा है, दुआ फरमाया अल्लाह मेरा माल कम कर दे। आपने फरमाया नेमतों की बेकदरी कर। कहा नहीं होता, कहा सफर कर, सफर कर। सफर किया, कुछ अर्से के बाद आया तो कहने लगा मूसा अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, माल तो और बढ़ गया। आपने पूछा कैसा सफर किया था? कहा जब खाना भूख लगती थी, गले में रुमाल डाल देता, छोटे छोटे जर्रे रुमाल कपड़े पे गिरते थे, खाना ज़ाय नहीं करता था, फिर उसको किसी कीड़े मकोड़ों के बिलों में डाल देता था। रिस्क की एहतियात के उसने अपने वाकयात सुनाए। फरमाया जा, तुझे अल्लाह फकीर कभी नहीं कर सकता। एक बादशाह शिकार खेलते खेलते कहीं गुम हो गया, साथियों अपने मुहाफिजों से बिछड़ गया, तो जाके उसने एक देखा कि एक बंदा है, उसके अनारों का बाग है। तो उसने अनारों का बाग, इतने ज्यादा अनार हैं कि जो अनार खोलता है उसमें मोती ही मोती हैं। तो उसने कहा मैं बादशाह हूं, ऐसे बिछड़ गया हूं। तो उसने कहा बादशाह सलामत, आप तो बादशाह हैं, दुआ करें, मेरे पास रिस्क बहुत है, माल बहुत है, कम हो जाए।
تو اس نے کہا تو رزق کی بے قدری کیا کر. تو اس کا ہاتھ ایسے کانپا، کانپ پہ ہاتھ کے ساتھ انار چھوٹ گیا. جب انار چھوٹ گیا تو ہر دانہ لال جواہر بن گیا اور کہنے لگا میں رزق کی بے قدری کروں؟ کہا پھر رب بھی تجھے نہیں چھینے گا، تجھے نہیں چھینے گا. بجلی رزق ہے. اب کہتے ہیں انرجی سیور، اب کہتے ہیں فلاں چیز رزق ہے، پانی رزق ہے. ایک بات کہوں، میں گاڑی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اکثر گاڑی والا آخری وقت اشارہ دیتا ہے اور پیچھے والا بیچارے کو دھوکا ہوتا ہے کہ اس نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. وہ اشارہ دے بھائی، کہہ رہے اشارہ تو یہاں ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ٹریفک کے قوانین میں اشارہ 500 میٹر پہلے ہوتا ہے یا 100 میٹر پہلے ہوتا ہے. آخری وقت میں دے گا. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آخری وقت میں اشارہ دے گا، میں کیا کروں کہ اشارہ پہلے دے، اس بندے کو راحت پہنچا جو پیچھے آ رہا. اس ٹریفک کے قوانین ہمارے لیے لازم ہیں، اس سے لازم انسانیت کے قوانین ہیں، اور ٹریفک کا قوانین بھی انسانیت ہی کے لیے ہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے. اس دن کہنے لگے جی ہماری گاڑی کا چلان ہو گیا، 5,000 روپے دے کے. انہیں کیا تھا؟ کہا دھواں تھا. میرے خادم کہنے لگے، میں نے کہا بھی چلان ٹھیک ہوا ہے، غلطی ہماری ہے، بادشاہ کا قانون ٹھیک ہے. اس دھوئیں نے ہماری سردی کو ختم کر دی. دسمبر کی سردی ہے، کہاں کہاں گئی ہے سردی؟ اس دھوئیں نے ہماری سماری نعمتیں ہم سے چھین لی ہیں. چلان ہوا ہے کہ گاڑی کا دھواں تھا. انہوں نے کہا جی حضرت ہماری گاڑی کا چلان ہو گیا. کیوں ہوا؟ کہ دھواں تھا. میں کہا ٹھیک ہوا. اصلاح ہمیں کرنی تھی، بادشاہ کو اصلاح نہیں چاہیے، ہمیں اصلاح چاہیے. اپنی زندگی میں نعمتوں پہ نظر رکھیں، میری منت ہے. آئے میں آپ کو اس وقت دنیا کا ایک چیز دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت حالات کیا ہیں اور آنے والے حال میں حالات کیا ہوں گے. یہ کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ ایک طرف پوری دنیا میں غذا کی کمی کا شکوہ، ہزاروں بچے بھوک غذائی کمی سے موت کے منہ میں جا رہے. دوسری طرف رزق کی ناقدری کا حال. یہ گزشتہ 8 سال پرانا میں اعداد و شمار بیان کروں، صرف 8 سال پرانا. امریکہ میں 50% خوراک کوڑے کے ڈھیر میں جاتی ہے. برطانیہ میں 20 ملین ٹن خوراک سالانہ ضائع ہو جاتی ہے. 20 ملین ٹن. اور امریکہ میں 50%. جاپان میں 6.101 ارب ڈالر کی مالیت کی خوراک ضائع ہوتی ہے. جاپان میں 6.101 ارب ڈالر، ملین نہیں، ارب ڈالر کی غذا ضائع ہوتی ہے. اور ہمارے بر صغیر میں کھانا ضائع کرنے کے اپنے ڈھنگ ہیں، جس میں سر فہرست شادی ہے. شادی ہے. شادیوں کی تقریب میں سب سے زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے. حالیہ جائزے کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق، ایک شہر میں ہر سال شادیوں میں 950 ٹن غذائی اشیاء ضائع ہوتی ہیں، اور ہر سال تقریباً 80,000 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. 80,000 سے زیادہ، اور ہر شادی میں 950 ٹن، اور ہر شادی میں اوسطاً 1/3 1/4 کھانا ضائع ہوتا ہے. 1/3 چوتھائی، یعنی سالانہ 339 کروڑ روپے کا کھانا شادیوں میں برباد. 339 کروڑ، یعنی کتنے ارب؟ 3 ارب اور 39 کروڑ کا کھانا صرف آپ کے ملک میں ضائع ہوتا ہے. اور جس بادشاہ نے کہا نا کہ 1 ڈش، میں کہتا ہوں اللہ تیرے بچے چیز. ایک تحقیق کے مطابق ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے بڑے شہروں میں جس قدر خوراک کا ضائع ہونا ہے، اس کے 10ویں حصے سے دنیا میں بھوک سے مرنے والے لاکھوں افراد کو 2 وقت کا کھانا مل سکتا ہے.
غذا کو کوڑے میں پھینکنے والا انسان اس بات سے لا تعلق ہے کہ ٹھیک اسی لمحے جب وہ غذا کو کوڑے میں پھینک رہا، لاکھوں انسان بھوک سے اسی وقت مر رہے ہوتے ہیں۔ دور جدید کے انسان کے بے حسی کہ صرف شمالی کوریا میں اب تک 50 لاکھ افراد قحط کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، اس وقت بھی 15 لاکھ سے زائد انسان افریقی ممالک میں مرنے کے قریب ہیں۔ ہمارے ایک دوست گئے افریقہ میں، کہنے لگے کہ ان کے پاس سخت سردی تھی، لباس نہیں تھا، دھوپ میں بیٹھے ٹھٹر رہے تھے سردی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو مجھے ترس آیا، میرے پاس کچھ روٹیاں تھیں، تو میں نے کہا کہ روٹی، انہوں نے کہا خیال کرنا، ایک بندے سے کہا ان کو ٹکڑے کر کے پھینک دے ورنہ تجھے چیر دیں گے۔ اور کہا میں نے روٹی کے ٹکڑے کر کے، ہمارے کرنل صاحب تھے، ٹکڑے کر کے پھینکے، ٹکڑے کر کے پھینکے، اور وہ ایسے جھپٹے کہ جان کھا جائیں گے ایک دوسرے کی۔ رزق کی ناقدری اور کھانے کے ضائع کرنے سے متعلق تمام ملکوں کی آئیں دنیا میں سعودی عرب گزشتہ ماہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کی رپورٹ، سعودی کے وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلی، یہ وزیر ہیں ماحولیات، پانی اور زراعت کے عبد الرحمن عبد المحسن الفضلی نے انکشاف کیا ہے مملکت میں خوراک کے ضائع کرنے کی شرح 33% سے زیادہ ہو گئی ہے، 33% سے زیادہ۔ اور مملکت میں، سنیں آگے لفظ سنیں، سالانہ 40 ارب ڈالر کی خوراک ضائع ہوتی ہے، 40 ارب ڈالر کی خوراک ضائع ہوتی ہے۔ وزیر ماحولیات نے کھانے کی خریداری میں توازن، خوراک کے ضائع ہونے کی روک تھام کے لیے باہمی تعاون، خوراک کی قیمت اور اس کے ضائع اور اسراف سے بچنے اور خوراک کے تقدس کو یاد رکھنے، کھانے کی مقدار کو کم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر طریقہ کار کو زور دیا ہے۔ یہ اس نے باقاعدہ تحقیق کی ہے۔ تحقیق اقوام متحدہ کا ادارہ برائے خوراک و زراعت کے مطابق، اب اقوام متحدہ کی رپورٹ بتاتا ہوں، دنیا میں ہر سال پیدا ہونے والے اناج کا 1/4 چوتھائی حصہ ضائع ہوتا ہے، جبکہ ضائع کردہ کھانے کی مقدار تقریباً 3.1 ارب ٹن ہے۔ 3 ارب ٹن، کتنے ٹن؟ ارب ٹن غذا ضائع ہوتی ہے، جس کا صرف چوتھائی اگر ہو تو پوری دنیا میں کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور کہا کہ یہ رجحان اتنا بڑھا کہ 2030 میں انہوں نے، اقوام متحدہ نے جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے کہ 2030 میں یہ 20 ارب ٹن سے تجاوز کر جائے گی، 3 سے ارب ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ رزق ضائع ہوا، اور رزق ضائع ہونے میں نعمتیں اللہ نے چھین لی، پھر کہتے ہیں مہنگائی بادشاہ لا رہا، اس حکومت نے آ کے مہنگائیاں کر دی، پھر کہتے ہیں اگلی حکومت آئے، پھر اگلی آئی، مہنگائی اور بڑھ گئی۔ بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ والو، بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ نہیں چاہے گا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے میری رعایا، میرے عوام مہنگائی کو ناپسند کرتے ہیں، پر بادشاہ کے بس میں نہیں، یہ شہنشاہ کے بس میں ہے۔ سنیں آج ایک سرکار کا فرمان بتاتا ہوں، درود پاک پڑھیں۔ سرکار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ ریٹ لسٹ عرشوں سے طے ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، آپ کہتے ہیں فرشوں سے طے ہوتی ہے کہ یہ چیز اتنے کی بکے گی، یہ چیز اتنے کی بکے گی، یہ چیز اتنے کی بکے گی، تو بادشاہ کے بس میں ہے ہی نہیں۔ عرشوں سے طے ہوتی ہے، روزانہ ریٹ لسٹ عرشوں سے طے ہوتی ہے۔
मेरा अल्लाह कहते हैं आज इस चीज का ये रेट होगा, हमने इसको महंगा कर दिया, लोगों की पहुंच से दूर कर दिया। और वो किसकी बुनियाद पे तय होती है? बेकदरी की बुनियाद पे तय होती है। रिस्क की बेकदरी, नियमतों की बेकदरी, अता की बेकदरी। मुझे एक साहब कहने लगे, हमारे पड़ोस में एक घर है, उस घर के साहब कोई बड़े जाने पहचाने हैं, किसी ओहदे में जाने पहचाने हैं, उनके घर में गिफ्ट हदिये बहुत आते हैं। कहा गिफ्ट हदियों के बारे में क्या लफ्ज कहूं कि वो पैदा हो गई है, उनके बारे में बस एक उकताहट पैदा हो गई है। वो कहने लगे कि वो साहब कहते हैं मैं डरता हूं अपने पड़ोस को कि अल्लाह कोई एक वक्त ना आ जाए फिर दरवाजा खटखटाने को तरसे कि शायद कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं लाया होगा। हमारे वालिद साहब के साथ एक धोबी की दुकान होती थी, मुझे उसके अल्फाज याद हैं। ईद का दिन था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब्बे ने कहा बेटा फला मालदार आदमी है, उसके घर कपड़े ईद की सुबह ले जा, शाम को ना ले जा, सुबह ले जा, पैसे दे देंगे, घर रोटी होगी। कहा कि मैं कपड़े दे के खड़ा रहा, तो उसने कहा आज हम जरा ईद की तैयारियां कर रहे हैं, आप जाएं, पैसे बाद में देंगे। कहा घर में लोग ईद मना रहे हैं, हमारे घर में फाका था। तो कपड़े धो के दे आए थे ना, तो उन कपड़ों से पैसे मिलने थे। उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। कहा कि हमारे लोगों की ईदें थीं और हमारे घर में फाका था। ये फाके ऐसे नहीं आते, ये कुछ तरतीब से आते हैं। जब नेमतों के बारे में उकताहट पैदा हो जाए, उकताहट पैदा हो जाए, अताओं के बारे में उकताहट पैदा हो जाए, फिर अल्लाह कहता है अच्छा हम फिर छीन लेते हैं, हम फिर छीन लेते हैं। एक बाबा जी थे, बाबा जी मियां साहब मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनका वाकया आता है कि एक जगह से जूती उतार लेते थे, एक गली गुजरते थे तो जूती उतार लेते थे, आगे जाके जूती पहनते थे, जूती पहनते थे। तो किसी ने कहा हजरत ये जूती क्यों उतार लेते हैं? कहा कि पांव की आवाज ना है। यहां एक बुढ़िया का घर है, एक वक्त था उसके घर में चहल पहल होती थी, अब उसके घर में कोई नहीं जाता। हर जूती की आवाज में कहते हैं शायद कोई आ जाए, मेरी इस जूती की वजह उसका दिल ना दुखे, मैं जूती उतार लेता हूं, आगे जाके जूती पहनता हूं कि जूती की आवाज से उसका दिल ना दुखे। हर जूती की आवाज में उसका इंतजार होता है कि शायद कोई आएगा और कोई आके मुझे कुछ देगा। वो चहल पहल खत्म हो गई है, सब खत्म। न गोरे सिकंदर न रही कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल है न गूंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरें खिजा कैसे कैसे, हर एक दिल पे हैं दाग नाकामियों के, निशान दे गया बेनिशान कैसे कैसे। नेमतों की कदरदानी इसने कर ली। जूता मुझे याद है मेरे पास लाया, क्या जूते में चूहे ने बच्चे दे दिए। क्यों दिए? करे जूते बहुत ज्यादा हैं, पड़े 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 पड़े। जूते ही बहुत ज्यादा। अल्लाह की नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी। जो नेमतों की कदरदानी करेगा रब उसे अता करेगा, रब उसकी नस्लों को अता करेगा। हमने क्या किया? लोग हमारे यहां पुराने कपड़े जूते फर्नीचर चीजें यहां फेंक जाते हैं अबकरी के, हम उसको छांटी करते हैं। छांटी करने के बाद जनाना मर्दाना कपड़े जूतियां चीजें बोरे बनाते हैं और बोरे बनाने के बाद फिर आफत ज़दा इलाकों में उसको भेजते हैं। आज भी हमारा कंटेनर जाएगा, आप भी अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कंटेनर अभी दर्स के बाद जो है वो आएगा, वहां खड़ा होगा, तो उसको आप भी हिस्सा मिला लें, आपके हाथ लगेंगे, वो कंटेनर भर जाएगा। तो अल्लाह के यहाँ अभी सैलाब ज़दगान में जो मुतासरीन हैं हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां अल्लाह ने बहुत खिदमत का मौका दिया, तो वहां पहुंचा देंगे, हिस्सा मिला लीजिएगा। दर्स के बाद, दुआ के बाद, लंगर के बाद कंटेनर नीचे होगा, ऊपर से सामान उतारना, उसको कंटेनर में भरना, भर के वो चला जाएगा। हर दफा जाता है। ये वही चीजें हैं, नए पुराने कपड़े बर्तन चीजें
لوگ یہاں دے جاتے ہیں، ہم بندے بیٹھے ہیں، ان کی چھانٹی کر، سیٹ کر، ترتیب بنا، سلیقہ دے، ایک بورا بنا دیتے ہیں، اس میں سب کچھ ہے، ضرورت مندوں کو وہ بورے دے دیتے ہیں۔ ابھی کچھ 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے ایک کنٹینر گیا تھا سیلاب زدگان میں، اب پھر جا رہا ہے کنٹینر سیلاب زدگان میں۔ نعمتوں کے بارے میں پوچھو گی، اگر نہ کیا رب پھر ختم کر دیتا ہے نعمتوں کا نظام۔ شہنشاہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، جب دیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا آ کہاں سے رہا ہے، اور جب لیتا ہے پتہ نہیں چلتا جا کہاں سے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے جا رہا اور کہاں سے آ رہا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، پسینہ پسینہ تھے، بہت زیادہ، پرانی بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے لاہور کے فلاں کونے سے آیا ہوں، 6 روپے کرایہ ویگن کا، جیب میں نہیں تھے، آپ سے ملاقات تھی، چل پڑا ہوں۔ ان کی جالیاں بنانے کی فیکٹری، یہ پی ٹرپ کی جالیاں نہیں ہوتی بات میں، جالیاں پی ٹرپ کی جس سے پانی اندر جاتا ہے، ان کی جالیاں بنانے کی بہت بڑی فیکٹری تھی اور بہت بڑا کام تھا۔ بس مجھے کہنے لگے 2 چیزیں مجھے کھا گئیں، ایک بینک سے قرضہ لیا تھا سود پہ، اور دوسرا نعمتوں کو بے بہا ضائع کیا کیونکہ نعمتیں بے بہا مل گئیں، پھینکا، ضائع کیا۔ رب نے کہا موقع دیا، اللہ نے موقع دیا، پر جب دیکھا نا کہ اللہ نے کہ یہ بندہ باز نہیں آتا، پھر اللہ نے نعمتیں چھین لی۔ اس لیے اللہ کے ایک نام میں، جیسے یا قہارو اللہ کا نام ہے نا، ایک نام ہے یا قابضو، ہر چیز کو اللہ نے بند کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے بند کر دیا، یا قابض، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ نعمتوں کو ضائع کیا، نعمتوں کو چھینا، اور اللہ پاک نے پھر اس کی نسلوں کو ختم کر دی، نسلوں کو ویران کر دی، نسلوں کو ویران کر دی۔ اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو نعمتیں بچا بچا کے غربا مساکین تک دیکھیں۔ یہ مزاج عثمانی ہے۔ ایک شخص آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں، اپنی غربت فقر کا درخواست کی۔ انہوں نے کاسٹ بنا کے بھیجا حضرت عثمان کے گھر کہ اس کی مدد کرو، اور عثمان کے گھر گیا تو اندر سے کچھ آوازیں اونچی ہو گئی تھی، اور آواز یہ آ رہی تھی کہ چراغ کی بتی موٹی بنائی، جو چراغ 2 دن میں جلنا تھا 1 دن میں جل گیا۔ موٹی بتی تو تیل بھی زیادہ پیے گی، تجربے بتا رہا ہوں نا، کیونکہ چراغ کی بتیوں کا دور تو ختم ہو گیا، تو تیل بھی زیادہ پیے گی۔ جب تیل زیادہ پیے گی تو وہ تو 1 دن میں جل جائے گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ جو بندہ چراغ کی بتی کے اوپر الجھ رہا، وہ بندہ مجھے پیسے کیسے دے گا؟ باہر کھڑے ہو کے سوچنے لگا، واپس جانے لگا، پھر کہنے لگا کیوں واپس جا رہا؟ اپنے آپ سے کہنے لگا دیکھ کاسٹ کس کا ہے؟ کاسٹ تو کملی والے کا ہے، کاسٹ تو مدینے والے کا، کاسٹ کس کا ہے؟ تو اس نے آواز دی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، عثمان غنی تشریف لائے، حضور کا پیغام بھیجا، اندر سے اشرفیوں کی تھیلیاں لے آئے، ضرورت سے زیادہ، توقع سے زیادہ عطا فرمایا۔ رک گیا، اس نے کہا پھر اگر عطا فرمایا تو ایک مسئلہ بھی حل کر دیں، میں نے ایسے ایسے آواز سنی ہے اور آپ چراغ کی بتی کے اوپر ناراض ہو رہے تھے، اور ادھر حال یہ ہے۔ تو کہا ہم اپنی جانوں اور اپنی ذاتوں سے بچا بچا کر اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں، اپنی جانوں اور اپنی ذاتوں سے بچا بچا کر اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں، اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں۔ یہ ترتیب عثمانی ہے، یہ ترتیب عثمانی۔ میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، نعمتوں کے بارے میں سوچیں، میری ذات سے کون سی نعمت ضائع ہو رہی؟ پانی کا نل کا کھلا ہوا ہے اور منہ پہ ہاتھ مار رہا، نل کا کھلا ہوا ہے، کلی کر رہا، وہ نل کا بند نہیں کیا، نل کا بند نہیں کیا، نل کا بند نہیں کیا، اور پانی ضائع ہو رہا، بجلی ضائع ہو رہی، پنکھے چل رہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی، دروازے پتہ نہیں کیا کچھ۔ مجھے کاٹن کے ایک بہت بڑے، یہ یہاں جہاں نیا ایئرپورٹ کی جگہ بھی ایک کالونی بنی ہے، وہاں سوسائٹی ہے، اور ڈولفن فن کون سی پتہ نہیں، ہاں والٹن کے ساتھ
वॉल्टन के साथ सोसाइटी है, तो वहां रहते थे वो, फैल्कन। कह रहे मैं यहां रहता हूं फैल्कन में। तो मैंने कैसे? कहा नेमते जाएगी। फिर एक वक्त आता था, गाड़ी पुरानी थी, एसी नहीं चलाता था, एसी चलाऊंगा पेट्रोल का खर्चा ज्यादा होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, अपनी नेमतें खर्च कहां करनी थी, कर कहां बैठे, कहां करनी थी, कहां बैठे। शादी के नाम पे कहां खर्च करने थे, और शादी के नाम पे क्या कुछ किया, क्या कुछ किया। छोटी छोटी नेमतें। और शादी तो बहुत बड़ा टेस्ट होता है। अब बात बताऊं मैं आपको, बहुत बड़ा टेस्ट होता है। जफर आदमी ना उसको ना जानिएगा जो हो कैसा साहिब फहम और ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। और कहा कि इंसान की रूहानियत का पता दो जगह चलता है, रूहानियत का पता दो जगह चलता है। गौर से सुनना, रूहानियत का पता दो जगह चलता है, ये भी गौर से सुनना। एक शादी के वक्त, एक मौत के वक्त पता चल जाता है कि इसके अंदर रूहानियत कितनी है और रूहानियत की कितनी लंबी तकरीरें करता है। वही मौत के वक्त पता चलता है, या शादी के वक्त। कहते हैं शादी मेरी हसरत है, मेरा एक बेटा है, दो बेटे हैं। एक लफ्ज अमूमन सुमा, मेरी पहली खुशी है, मेरी पहली खुशी है। मैं एक सवाल अक्सर करता हूं, तलाक के बाद दूसरी शादी मुखसर क्यों की जाती? एक सवाल है, बताएं आप। तलाक के बाद उन्हें जी वो भी तलाक याफ्ता है, मैं भी तलाक याफ्ता हूं। फिर हमने कह दिया हजरत आप दुआ फरमाएं, हमने कहा है कि बस सास मुख्तसर होगी, पहली भी ना बसी, वो ना बसी या इधर से ना बसने दिया गया, वो तो अल्लाह का निजाम है। पहली बस बेटे की तलाक, मुख्तसर दो बंदे होंगे, कुछ नहीं होगा। ये दूसरी शादी फिर मुख्तसर क्यों होती है? दूसरी शादी मुख्तसर। एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत तस्बीहाने की बरकत से आप सब हसरतें खत्म हो गई हैं। मैंने बेटे की शादी में कहा है कि सिर्फ डीएचए में एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, कुछ सोना चांदी, कोई डायमंड हो, हजरत सब हसरतें खत्म हो गई। वो नियत बीमार हो गई, गलने ए तेरे हसरता मुबदिन हाली। हजरत आपकी दुआओं से दुनिया की हसरत। बस मैंने बेटे की शादी के लिए कहा एक बंगला हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, कुछ थोड़ा सा डायमंड हीरे हो जाए, कुछ सोना चांदी हो जाए, कुछ सूट हो जाए। और हमारे यहाँ एक बात और भैया, हजरत हमारे यहाँ रिवाज है कि खानदान के बड़े होना, उनको एक अंगूठी, एक जोड़ा, कुछ नकदी। मैंने कहा बस मुख्तसर ये हो जाए हजरत, अब तो दुनिया की हसरत ही खत्म हो गई। ये हसरत अभी खत्म हुई है तो शुरू कब होगी? आपकी बरकत से, बरकत भी मेरी है, आपकी बरकत से, आपकी बरकत से, आपकी बरकत से हसरत खत्म हो गई। हमारे एक अमेरिका के एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक लफ्ज है कि बेटे की शादी है, बेटे की शादी है तो बेटी वाले से कहते हैं दो चीजें लेनी है, जोड़ा और घोड़ा। घोड़ा गाड़ी, जोड़ा माल, बस ज्यादा नहीं चाहिए हमें, दो चीजें चाहिए, जोड़ा और घोड़ा। बेटी लख्ते जिगर नूरे नजर है, वो भी दे और जोड़ा घोड़ा भी दे। आखिर हो गई, आखिर हो गई। दुनिया मेरे ख्याल में कहां से कहां चली, छोड़ा और घोड़ा, जोड़ा और घोड़ा। नेमतों को अल्लाह के खजानों से मनवाएं। अल्लाह तो मेरी नेमत को उस जगह कबूल फरमा जहां तेरी रजा हो। अल्लाह से मनवाएं, अल्लाह से अर्ज करें, वरना नेमतें अल्लाह छीन लेगा, छीन लेगा। मुझे याद है हमारे एक बुजुर्ग थे सैयद कबीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे कि मैंने मुर्शिद खाने में ही मौत, और यही तस्बीह खाने में फौत हुए, कफन भी साथ, कहां सारा खानदान, कहां वो अल्लाह के नेक मुखलिस बंदे। कहने लगे कि मैं एक जगह ड्राइवरी करता था, एक हमारे अफसर थे, उन्होंने बेटी के लिए चांदी के लड्डू बना के रखे थे कि जो भी आएगा उसको लड्डू देंगे, लड्डू बना के रखे थे। शादी की तरतीब थी, शौहर फौत हो गया, शौहर फौत हो गया,
और कहा कि वो रोती रही। शौहर चला गया। 3 दिन के बाद खुद चली गई। लड्डू वही हैं, बेटी वही है, सब कुछ वही है। और फिर जो जवाल का निजाम आया, लड्डू भी न रहा और कुछ भी न रहा। अल्लाह के खजानों में मेरी दरखास्त है, नेमतों की कदरदानी। नेमतें ले लेके ढूंढें, ये मेरी नेमतें कहां लगेंगी। मेरे अंदर एक गम है, फिक्र है। सुनो मेरी बात को, मेरे अंदर एक गम और फिक्र है कि सैलाब जदगान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमों ने हफ्तों मेहनत की, अंदर तक गए, कश्तियों में बैठ बैठ के लाशें निकाली, बंदे निकाले, खाने पके, राशन दिए, अंदर उनको मकान बना के कौन देगा। कहने लगे कि एक जगह हम राशन बांट रहे थे तो लेन लगा, वहां की मकामी बंदा चुप करके उठा, उस बंदे से शिनाख्ती कार्ड ले लिया और खामोशी से उसको दे दिया। कहने लगा ये हमारे इलाके का रईस करोड़पति था, फकीर बन गया। उनको मकान बना के देना है, उनको घर बना के देना है, उनको फिर से कुछ जिंदगी का कोई 2 चारपाइयां, कोई 2 चटाइयां। देखें, खाना और छत ये इंसान का अखलाकी हक है, समाजी हक है, रूहानी हक है। खाना और छत ये जिंदगी का हक है। उनको कौन देगा? उनको कौन देगा? आज भी वो बेसरो समा पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। हमारी टीमें अंदर तक गई, इतने सनसनीखेज वाकयात जो मुझे आके टीमों ने बयान की। वो दीर, वो सूबा सरहद की, वो सवात केपी की, वो सवात पता नहीं कहां, और वो गिलगित के आखिरी चाइना के बॉर्डर में सैलाब, और वो पंजाब लाहौर का इलाका, और वो जनूबी पंजाब जलालपुर और पता नहीं कहां के इलाके, वो सारे सैलाब में 70 साल 80 साल से बैठे हुए कहने लगे 70 80 साल 100 साल हो गए, आज तक सैलाब नहीं आया। पर याद रखिएगा, दरिया अपनी पुरानी जगह को सूंघ के आता है। लाहौर में कितनी सोसाइटियां ऐसी थी जो दरिया में थी, लेकिन दरिया को बहते कोई 40-50 साल वो सूंघ के आया। दरिया राहें दरिया अपनी नहीं छोड़ता, उन तक कौन पहुंचाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत खल्क फाउंडेशन ने वो निजाम पहुंचाया, मुखलिसीन ने मेरा साथ दिया। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझसे लगवाया। शुक्र है मेरा माल जुओं पे, रेसों पे, बीमारियों, दुखों, हादसों पे नहीं लग रहा। अल्लाह मेरा माल यहां लगवा रहा है, उसकी करीमी है, उसकी अता है। अब उनको मकान कौन बना के देगा? उनको खाना कौन देगा? उनकी जरूरियात का कौन ख्याल रखेगा? मुझे आपका साथ चाहिए। मैं पूरी दुनिया से अर्ज कर रहा हूं, मैं पहली दफा आज जाके ये बात कर रहा हूं। मुझे उनकी गुर्बत, उनकी तंगदस्ती, उनकी आहें और सख्त सर्दी के अंदर का कांपना, मेरी टीमें अब भी काम कर रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह मुझे अपनी जात से लगाने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा नहीं करता, मुझे अल्लाह ने अपनी जात से लगाने वाला बनाया है, लेकिन अब हालात मेरे बस से बाहर हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें मकान बना के दूं, उन्हें गर्म कपड़े दूं, कंबलें दूं, उनको खाने और राशन दूं। पूरा मुल्क, हम भी कैसे दीवाने निकले, सैलाब गया, हम भूल गए। मैं तो अभी नहीं भूला, उन दर्दमंदों को नहीं भूला। आज भी कंटेनर जा रहा है, मैं तो नहीं भूला, आप भूल गए। मैं पूरी दुनिया के अपने मुखलिसीन से अर्ज करूंगा, पूरी दुनिया में जहां मुखलिसीन है, अल्हम्दुलिल्लाह अबकरी का एक एहतमाद है, अबकरी का एक भरम है, और अल्लाह पाक हमेशा एतमाद को बाकी रखा है। ऐसे ऐसे जरूरतमंदों तक यह निजाम अल्लाह हमसे पहुंचवा रहा, जिन जरूरतमंदों को आप पहचान ही नहीं सकते, जिन जरूरतमंदों को आप जान ही नहीं सकते। अबकरी खिदमत खल्क फाउंडेशन, उसके जरिए से पूरी दुनिया में निजाम चल रहा। पूरे मुल्क में अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैं तुर्की में जाके जलजले में तुर्की के और ऐसे गांवों में काम किया जहां नजर ना आए, गांव में कोई नहीं जाता था। गांव में गया, तुर्किया के गांव में, अदियामान में गया, कहरमान मराश में गया। अदियामान गाजी अंतप जलजले का मरकज था। एक शहर गाजी अंतप, एक अदियामान, एक कहरमान मराश, एक हताए, ये शहर हैं जो शाम के बॉर्डर की तरफ हैं। वहां गया जलजा जदगान के लिए। अल्लाह ने बहुत तौफीक दी, बहुत तौफीक दी।
गांव में गया और उनकी खुददारियां देखी। फिर शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए गया और शाम के उन इलाकों में गया। मैंने पहले कोशिश की तुर्की से मैं शाम चला जाऊं, ना जा सका। फिर शाम में गया, शाम की कस्मा पुरसी देखी, सहाबा की, आले बैत की, बड़ो बड़ी हस्ती औलिया सालेहीन की नस्लें हैं, औलादें हैं। अब की खिदमत खल्क फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह एक निजाम है पूरी दुनिया में। अब मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर ज़लज़ला ज़दगान के लिए सख्त जरूरत है। मैं पहली दफा मुतालबे कर रहा हूं, मेरी पिछली तारीख है, मैं इस शोबे में 84 से आया हूं, 1984 से 2024 में 40 साल जिंदगी के गुजर गए। आज मैं रो के कह रहा हूं कि मेरी बस हो गई है। लगाते 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 इस खिदमत खल्क के इस निजाम में बहुत से अहबाब ने हिस्सा मिलाया, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे जो है वो अल्लाह ने बस मेरे माल को कबूल किया। अब उनको चाहिए, मकान चाहिए, गर्म लिबास चाहिए, उनको ग़िज़ा चाहिए, उनको खुराक चाहिए, उनको जिंदगी चाहिए। और बगैर तखसीस मजहब, फिरके, रंग, नस्ल के अबकरी ने काम किया और कर रहा है। बगैर किसी मजहब के, फिरके के, रंग के, सूबे के, कौमों के, नस्लों के अल्लाह पाक ने अब अबकरी को तौफीक दी है। पूरी दुनिया से दरखास्त करूंगा, पूरी दुनिया से अर्ज करूंगा, हमारी सोशल मीडिया पे मेरे अहबाब कुछ थोड़ा सा तारुफ डालेंगे, उसमें अकाउंट भी हैं, उसमें हमारे मोबाइल नंबर भी हैं। सिर्फ उन्हीं 2 मोबाइल हैं, उन पे एतमाद करें, उसके अलावा किसी पे ना करें। हमारे अकाउंट हैं बस, उसके अलावा किसी पे नहीं। मैं पूरी दुनिया से अर्ज करूंगा, मैं गरीबों की बर्दाश्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अभी कंटेनर जा रहा, मैं उसे खुद जाके बांटूंगा सैलाब ज़दगान में। अभी आज रात निकलेगा, आप सारी मदद करके उसको लोड करा देंगे। वो नहीं हो सका। एक और भी दरखास्त है, नीचे चावलों के ट्रक आए हुए हैं, वो ऊपर भेजने हैं। ऊपर का ट्रस्ट नीचे, नीचे चावलों के ट्रक ऊपर भेजने हैं। रोज अबकरी खिदमत खल्क का अल्हम्दुलिल्लाह देगें पकती हैं, बिरयानी रोज यहाँ मखलूक खुदा खाती है, वो ट्रक भी ऊपर भेजने हैं। एक एक बोरा ऐसे उठा लेंगे तो 10 मिनट के अंदर सारी ऊपर चले जाएंगे। जज्बे बढ़ाएं, पूरी दुनिया से अर्ज करूंगा, जज्बे बढ़ाएं। इंसान बहुत दुखी है, यकीन जानिए। सैलाब ने जो किया है, हद हो गई। आंखों से जाके अगर आप देखते तो आपका सीना फट जाता, कलेजा फट जाता। हम भूल गए, इतना जल्दी भूल गए सैलाब को, बस खत्म। एक झोंका था, एक हवा का, आया चला गया, हवा का कोई झोंका था। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप हर बंदा अपने जिम्मे ले ले कि मैंने इतने मकान, इतनी रजाइयां, इतने गर्म चीजें, इतना निजाम, इतने खुराक, इतने खेमे, इतने टेंट, फलां चीजें, इतना मेडिकल उनको चाहिए, उनका मेडिकल चाहिए। वबाएं फूटी हैं, बीमारियां फूटी हैं पानी की वजह से, मच्छरों की वजह से। वहां बीमारियां, हमने उनके इलाज, दवा, फिर भी दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% सच्चा हूं। मैं दावा नहीं कर सकता। अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा करे। मैं पहली दफा, आज क्या दिसंबर है, 18 दिसंबर 2025 में पहली दफा मैं पूरी दुनिया से मुतालबा कर रहा हूं। आज तक फकीर को अल्लाह ने लगाने वाला बनाया, पर मेरी आखिर बस हो गई है। मैं लगाता रहूंगा, अल्लाह मेरे माल को, जान को, मेरे जज्बों को कबूल करता रहे। लेकिन आज 18 दिसंबर जुमेरात, मैं लाहौर से पूरी दुनिया को मुतालबा कर रहा हूं कि उनको बहुत कुछ चाहिए। हमें करोड़ों अरबों के फंड्स चाहिए और डोनेशन चाहिए, जो पूरी दुनिया में हम उन गरीबों को मकान बना के दें, उनको घर दें, उनको खाने दें, उनको मेडिकल दें। उनके बच्चों के जहेज चाहिए, उनके जहेज डूब गए। उनके खाने डूब गए, उनकी जिंदगियां डूब गई, उनके घर के लाशें लापता है, उनके सोतों पे पानी की लपेट आई, रब नाराज है, लपेट आई, उनका सब कुछ खत्म हो गया। मैं पूरी पाकिस्तान के जहां जहां अल्हम्दुलिल्लाह अबकरी ने काम किया है, कितने मुल्क शहरों में काम किया, 56 शहरों में हमने काम किया है। अबकरी फाउंडेशन ने 56 शहरों ने काम किया है। और वहां उनको जरूरियात, अब उनको अगली जरूरत जो मैंने अर्ज किया वो है खाना भी, मेडिकल भी, लिबास भी, सर्दी गर्मी भी। और उनको चाहिए, उनको चाहिए, उनको चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हमारा
खाना लंगर चीजें चल रही हैं, एक जगह नहीं, बहुत फिल्टर प्लांट चल रहे हैं, एक जगह नहीं कई जगह पे पानी, मीठे पानी के निजाम चल रहे हैं, और बहुत गरीबों के महाने चल रहे हैं, बेवाओं के, तालिब इल्मों के जो है महाना उनके फंड्स चल रहे हैं, तालिब इल्म गरीबों के। अब यहाँ एक बहुत बड़ा निजाम चाहिए घर के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनकी सर्दियों के लिए, उनके निजाम के लिए। बस आप सारे अज़्म करें और पूरी दुनिया के मुखलिसीन अज़्म करें, और सिर्फ हमारे ये 2 नंबर हैं, 1-2 नंबर हैं, इसके अलावा नहीं, हमारे अकाउंट हैं, इसके अलावा नहीं। यकीन जानिए अल्लाह पाक जल्ल शानहू देने वाले की नस्लों को कभी फकीर, गरीब, मंगता, तंग दस्त नहीं बनाता। जो आफत ज़दा लोगों के लिए करता है, रब उसकी नस्लों को आफत से, मुसीबतों से और तूफानों से और परेशानियों से बचाता है। यकीन जानिए मैं तुर्की में था, उस जलज़ला ज़दगान में, तो मैं एक ऐसे शहर में गया जहां एक लंबा मैदान था मैयतों के लिए, लंबा मैदान था। तो मैं वहां गया, तो वहां जाके मैंने फातिहा कही। वहां एक पुलिस वाला खड़ा था, पुलिस वाला, वो मुझे देख के कुछ बातें करने लगा। मैंने साथ वाले बंदे से पूछा ये क्या कह रहा? कहा कि बड़े अरसे के बाद ऐसा चेहरा और ऐसी शक्ल मैंने देखी है, इसके देखने से मेरे दिल को सुकून मिलता है। उसने मेरा लिबास देखा, चेहरा का सुकून मिलता है, और कहा ऐसे लोगों को यहां आके फातिहा करनी चाहिए। आप बस गरीबों का हाथ पकड़ें, जरूरतमंदों का हाथ पकड़ें। मेरे आका का फरमान है उस बंदे का ज्यादा ख्याल करना जो उरूज पे था और जवाल पे चला गया। मैंने सरकार की हदीस का मफहूम बताया, जो उरूज पे था और जवाल में चला गया। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका, अल्लाह मैं नेमतों के जवाल की पनाह मांगता हूँ। उनको उरूज था, उनका जवाल आ गया, और जवाल आ गया, और जवाल आ गया। इतना जवाल आया कि आज तक उनको खाने को कुछ ना मिला, पीने को कुछ ना मिला। बस मेरी एक दरखास्त है आपसे, पूरी दुनिया के मुखलिसीन को मेरा ये पैगाम पहुंचाएं। आज के 18 दिसंबर का आज का पैगाम पूरी दुनिया में मुखलिसीन तक पहुंचाएं। मैं रो रो के दरखास्त कर रहा हूं, रो रो के बयान कर रहा हूं। मैं अपनी जात के लिए नहीं मांग रहा, मैं उनके लिए मांग रहा हूं जो देने वाले थे आज लेने वाले बन गए, और उनको देने वाला कोई नहीं है, उन मंगतों को देने वाला कोई नहीं है। और फिर कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक हाथ नहीं फैला सके, आज भी हाथ नहीं फैला सक रहे, और खामोशी से उनके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह अपकरी फाउंडेशन उनके घरों की जरूरत जा जाके उनके दरवाजों पे चुपके से हम दे रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह से मनवाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मनवाएं कि अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा, तू हमें तौफीक अता फरमा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, खवातीन अपना जेवर, पैसे, पूरी दुनिया में जितने जितने लोग वहां बैठे हैं, चीजें, लेकिन देते हुए एहतियात कीजिएगा। हमारे खास नंबर हैं, और 2 मोबाइल इसके अलावा ना कीजिएगा, क्योंकि वाकयात मेरे साथ बहुत हुए हैं। और ये मैंने ऐलान एक इसलिए भी किया है, जरा मेरी वार्निंग सुन ले। अब भी मेरे सामने आज एक बंदा बैठा है यहाँ जिसने लोगों को लाखों रुपए ले लिए मेरे नाम के ऊपर। मैं नहीं लेता, लोग देने को तैयार हैं, पर उसकी राहें ये हैं कि लोग जो भी मेरी निस्बत से कोई चलता है, आवाज देता है मेरी निस्बत से, लोग उसको लाखों दे देते हैं। लोग उसको, बहुत नाखुशगवार वाकयात हुए हैं। आज भी मेरे पास वाकई आया, एक बंदे ने तस्बीह खाने के निस्बत से 60 लाख ले लिया, एक ने 15 ले लिया, एक ने 12 ले लिया। मेरे पास वाकयात दर वाकयात हैं, नाखुशगवार वाकयात मेरे साथ हुए हैं और बहुत ज्यादा हुए हैं। आखिरकार मजबूरन 18 दिसंबर को मैं ऐलान करने लगा, ऐलान कर दिया, कर रहा हूं कि लोग फिर आखिर दूसरे राहों से, कि हजरत ने हमें कहा है कि मस्जिद बनानी है, किसी ने कहा हजरत ने घर बनाने हैं, किसी ने कहा हजरत ने ये कहा है, हजरत ने ये फरमाया है। अब जब वो हजरत का नाम आता है तो फिर हमें उसकी परेशानी होती है। हमें मुस्तहिक बच्चियों के लिए जहेज, शादी के खाने, नंबर 3 महाना राशन चाहिए, मुस्तहिकीन स्टूडेंट के लिए महाना वज़ाइफ, नंबर 5 फिल्ट्रेशन प्लांट, नंबर 6 मुस्तहिक खानदानों के लिए महाना, जो उनका महाना लगाया जाए, नंबर 7 शोबा सेहत के लिए, मेडिकल के लिए काम, और नंबर 8 शुमाली इलाका जात में और सैलाब ज़दगान में गर्म कपड़े, खुराक चाहिए। हमें कुछ ये चीजें चाहिए जो हमें जरूरत है, और इसकी अशद तरीन जरूरत है, इसकी अशद तरीन जरूरत है। और
अपनी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क फाउंडेशन और ट्रस्ट गवर्नमेंट से बाकायदा मंजूर शुदा है और इसका हर साल बाकायदा हम ऑडिट देते हैं, पूरा निजाम है। अल्लाह पाक हमारे जज्बों को कबूल करे। आए फिर वो अमल करते हैं जिस अमल के लिए आज हमारा इख्तितामी अमल है। इख्तितामी अमल है सैयदा नफीसा ताहिरा का, आज तीसरी जुमेरात है। वो अमल करते हैं और पहले अर्ज करूंगा कि वो अमल आप करने, वो अमल करें, वो अमल करें, वो अमल करें। लेकिन अमल से पहले मुझे एक बात और याद आई है। आप जो भी 2.5% निकालते हैं अपने रिस्क और माल का, उसका 2.5% भी अपनी फाउंडेशन की तरफ मुतवज्जे करें कि आज के बाद वो 2.5% भी हम अपनी खिदमत खल्क फाउंडेशन को देंगे, ताकि आपका हिस्सा मुस्तहिकीन तक पहुंचे और सही जरूरतमंद तक पहुंचे। ऐसे जरूरतमंद हो जिनको तलाश कर करके दिया जाता है। मैंने 40 साल के बाद ये जिंदगी में पहला ऐलान किया है, अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा रखे। मैंने अपनी जात से लगाया है या नहीं लगाया, अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा रखे और अल्हम्दुलिल्लाह निजाम चल रहा है। अब दरखास्त यह है, सैयदा नफीसा ताहिरा का अमल तीसरी जुमेरात है और ये तीसरी जुमेरात अहम जुमेरात है। आज हम उनके लिए अमल करेंगे। उनको आपने माल का हदिया दिया, आप उनको माल का क्या हदिया दें, आज ही फैसला कर लें। पूरी दुनिया में जहां अल्लाह की नेक बंदियां और बंदे बैठे हैं, अपनी कीमती सी कीमती चीजें अपनी फाउंडेशन के खिदमत के खल्क तहत नियत कर लें और उसका नियत सैयदा नफीसा की खिदमत में करते हैं। अपने माल का खर्च, अपनी चीजों का खर्च, अपने सोने चांदी चीजों का खर्च वो नियत कर लें और वो नियत वो दें अपनी खिदमत खल्क फाउंडेशन को, अपनी फाउंडेशन को, और उसका हदिया सैयदा की बारगाह में पेश कर दें कि हम आपकी बारगाह में ये पेश करते हैं, उसका सवाब, उसका हदिया। ये नियत कर ली सबने। और दूसरा ये है कि उनको सारा साल अमाल देना है। ये राज मेरा याद रखिएगा, ये राज मेरा याद रखिएगा, ये राज मेरा याद रखिएगा। एक चिट आई है कि बाथरूम के, हमारी बाकी चिटें ना दीजिएगा, कहीं चिटें आना शुरू हो जाए। ये मेरे जिम्मे, मेरे बैठे हैं जिम्मेदार, तो इनको जिम्मे है कि कोई बात मैं अधूरी छोड़ जाऊं तो उसको इन्होंने कहा है कि बाथरूम के मर्ज के शिकार के लिए हल फरमा दें। जो बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारता है उसका हल क्या है? उसके सिर्फ 2 हल हैं, एक असबाब, एक मुसब्बिबुल असबाब। मैंने हल की, मुझे याद आया एक सफर में था, तो ट्रेन के सफर में थे। अच्छा, वो सैयदा की बात चल रही थी, तो वो मैं याद रखिएगा, मैंने सारा साल एक अमल बताना है उनका, ठीक है? वो जरा ज़हन नशीन रखिएगा तो मैंने इसका जवाब दे दूं। तो एक साहब, सुबह का वक्त था, हमने नमाज फजर पढ़नी थी, तो मैंने एक साहब को पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ठहरे ठहरे ठहरे, आप चले जाएं चुप करके। तो ओ निकल जाएगा। मैंने कहा नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कहा निकल जा, निकाल दे, कोई बात नहीं। गर्मियां थी, मैं कहा शलवार पहन के दरवाजे में खड़े हो जाना, तू भी सूख जाएगा, शलवार भी सूख जाएगी। दरवाजे में ऐसे पकड़ के खड़े हो जाना, हवा लगेगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तू यूं करता, मैंने कहा कुछ नहीं होता। अच्छा मैं कर दे, पेशाब कर दे। कह रहा बड़ा भी आराम, मैं कभी भी कर दे। उसको मैंने अंदर ना जाने दिया। जब सारे फारिग हो के अंदर से वुजू करके मैं अब जा, मुझे पता है इसने निकलना नहीं। दरवाजे तोड़ते रहो, तोड़ते रहो, उसको परवाह नहीं। 2 रास्ते हैं। मैंने उसके लिए उसका इलाज किया। अपने आप को किसी के हवाले करो, टाइम देखो, मैं अंदर जा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा हाजत के लिए कितने मिनट होते हैं, बस उसके बाद दरवाजा खटखटाओ और मैं फौरन निकलूं। एक दूसरा, दिल ही दिल में बैतुल खला की दुआ पढ़े। कभी भी बैतुल खला में, टॉयलेट में जुबान से ना पढ़ना, जुबान से ना पढ़ना। बैतुल खला की दुआ कसरत से, कसरत से। जिस कम करीम मेरे आका मदीने वाले ने, जिस हस्ती ने फरमाया है कि वहां फैमिली रहती है, घराना रहता है। बैतुल खला में खुबस खबाइस, खुबस शोहर, खबाइस बीवी, खुबस वल खबाइस, मुज़क्कर और मुअन्नस वो रहते हैं। तो बैतुल खला की दुआ दिल में बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें। एक, और दूसरा असबाब अख्तियार करें, अपने आप से कहें, अपनी घड़ी देख लें, कर लें कि इतनी मिनट से ज्यादा मैं अंदर क्यों हूं, वरना मैं सच बताऊं चीजें पकड़ती जाएंगी, पकड़ती जाएंगी, पकड़ती जाएंगी और बड़ा घाटा हो जाएगा।
کہا شیطان اور اس کا قبیلہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، قرآن پاک کی آیت. کس پارے میں؟ 8واں پارہ سورت اعراف میں. کیا ہے؟ تیسرا رکوع. انہ یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہ. وہ قبیلہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو نہیں. قرآن کہتا ہے قبیلہ رہتا ہے اندر. بولو تو قبیلہ تو کہے گا کہ ہمارے دوست آ، ہمارا ساتھی بن، یہاں رہے، زندگی یہاں گزار. اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس واقعات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. بیت الخلاء میں قبیلوں کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو اپنے اوپر جبر کریں، دوسرا کسی کو مقرر کریں میرا دروازہ کھٹکھٹا، اور تیسرا مسلسل بیت الخلاء اسباب بھی اختیار کریں. اچھا، میں ایک بات عرض کرتا سیدہ نفیسہ طاہرہ کا ایک عرض ہے. یہ وہ ہستی نہیں ہے جن کو سال کے بعد یاد کیا جائے، یہ وہ ہستی ہیں جن کو سانسوں میں یاد کیا جائے. کس میں؟ کس میں؟ سانسوں میں یاد کیا جائے. یہ وہ ہستی ہیں جن کو سانسوں میں یاد کیا جائے، جن کو ہمیشہ زندگی میں یاد کیا جائے. آپ جتنا بھی، ایک میرا مشورہ ہے، 2.5% دنیا میں لوگ نکالتے ہیں، اور جس نے نکالا ہے اپنے رزق میں رب نے اس کو تمنگری، وسعت، دولت، عزت بڑھا کے دی. آپ 2.5% ان کی نیت سے کریں اور اپنی فاؤنڈیشن میں دیں. ایک دوسرا ایک اور نیت کریں، اور نیت کریں. کوئی بھی کہاں صدقہ، خیرات، عطیات جب بھی نکالیں ان کو دیں، اور اعمال کا ہدیہ دیں. روزانہ 2 تسبیح قل ہو اللہ، 1 تسبیح قل ہو اللہ، 11 بار قل ہو اللہ، 3 بار سورۃ اخلاص، کلمے کی تسبیح، اعمال، تسبیحات، نوافل، ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں. نوافل ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں. نوافل ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں. ہاں، نوافل ان کو ہدیہ کریں، ان کو نوافل ہدیہ کریں. جب ان کو نوافل ہدیہ کریں گے، ان کو نوافل ہدیہ کریں گے، پھر آپ اور اعمال کا ہدیہ کریں گے، اور مال کا ہدیہ، ٹھیک، مال کا، اعمال کا ہدیہ کریں گے. پھر اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول، برکتوں کے، وسعتوں کے، فیض کے، برکت کے دروازے، برکت کے دروازے. اور اس کا میں ایک چیز بتاؤں، سیدہ نفیسہ کا جو یہ حوالہ لکھا ہوا تھا، ان کا اکابر پر اعتماد کا حوالہ لکھا ہوا تھا کہ کس کے میں ان کے سارے حوالے، اس کی پوسٹ کا باقاعدہ کہاں ہے وہ ہیں؟ ہاں، یہ ہے 625 نمبر قسط ہے اکابر پر اعتماد. ان کے سارے حوالے اہل حدیثوں کی کتابوں میں، دیوبندیوں کی کتابوں میں، بریلویوں کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں سارے حوالے مستند موجود ہیں. سیدہ نفیسہ کے جو فضائل، جو ان کی برکات میں نے بیان کی ہیں، ان کے سارے حوالے آج ہی آپ جانیں. 625 نمبر قسط ہے اکابر پر اعتماد. ابکری میں لکھیں گے، اردو میں لکھیں اکابر اعتماد، انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، تو فوراً کھل جائے گی سارے حوالے. اس میں 625واں جو حوالہ ہے وہ سیدہ نفیسہ کا حوالہ ہے، اور سیدہ نفیسہ کی وہاں برکات ہیں بہت زیادہ. ایک تو یہ درخواست ہے. دوسری آپ سے عرض یہ ہے کہ نقش یار غار یار مزار جو ہے، یہ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کرنا ہے. ابھی جو 22 جمادی الثانی کو کیا تھا، الحمدللہ پوری دنیا نے کیا، اور پوری دنیا نے اس کی برکات پائیں، اس کی خیریں پائیں. پوری دنیا نے یہ عمل کیا، پوری دنیا نے کیا، اور پوری دنیا نے اس کی برکات اور خیریں پائیں، بہت زیادہ پائیں. ہر مہینے کرنا نہ بھولیں. اور دریائے نیل کا نقش ہر مہینے کرنا نہ بھولیں، نہ بھولیں دریائے نیل کا. آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دولت، وسعت، برکت کے دریائے نیل بہ جائیں گے. ہر جمعے کے دن تسبیح خانے میں عصر کے بعد، ہر جمعے کے دن خاص درود پاک، خاص درود پاک، اس کا روحانی پیکج ہے، اس میں شامل ہوا کریں ہر جمعے. اور ہر مہینے ایام 20، 13، 14، 15 یہاں باقاعدہ روزوں کی ترتیب، سحری افطاری کی، اور اس کے خاص عمل کی ترتیب ہے ہر. تو آج ہماری جو دعا ہوگی، ایک تو سیدہ نفیسہ کے عمل کی،
اور دوسری دعا ہوگی 11 روزے پوری دنیا میں لوگوں نے رکھے ہیں نا، بڑے طاقتور روزے ہیں 11 روزے، کوئی پتہ چلا؟ تو سردیاں دن چھوٹے، پتہ ہی نہیں چلا، روزے بھی ہو گئے، مشقت بھی نہیں ہوئی، مرادیں بھی مل گئی۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اللہ اکبر، یا سبب لی الخیر۔ یہ 11 روزے، اس کی انشاءاللہ آج دعا ہوگی، اور بہت زیادہ اس کی دعا ہوگی، بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی۔ اس کی برکتیں، اس کی خیریں ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے، سدا عطا فرمائے، ہمیشہ عطا فرمائے، اس کی برکتیں، اس کی خیریں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اعلانات ہیں، پھر ہم عمل شروع کرتے ہیں، اس پہ توجہ فرمائیں۔ ایک تو پوری دنیا میں تسبیح خانے کی نیت کر کے، حجویری محل تسبیح خانے کی نیت کر کے، اور پورے تسبیح خانے عبقری کے نظام کی نیت کر کے حفاظت والی دعائیں، اعمال، حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، بہت توجہ کریں۔ یہ ہمارا روحانی چند ہے، یہی دھندہ ہے۔ اور 40 بار سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، اس کا عمل پوری دنیا کر رہی۔ ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ التکاثر، میری نسلوں کا تصور کرتے ہوئے اللہ سے مانگے، اور 80 بار سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80، 11 بار سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80، 11 بار تسبیح خانے کو اور حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے کبھی نہ چھوڑیں۔ دو چیزوں کو، تسبیح خانے اور حجویری محل کو۔ یہ آج میں نے اضافہ کیا ہے، پہلے تسبیح خانہ کہتا رہا ہوں، آج میں نے حجویری محل بھی کہا ہے، اور آئندہ یہاں لکھا بھی کریں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ روٹی پکانے والی مشین، میں نے عرض کیا ہمارے تندور حجویری محل میں، یہاں ہر جمعرات لنگر پکتا ہے، تو تندور کے بس سے باہر ہے۔ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی مشینیں ہوں جو زیادہ گیس نہ لیں، زیادہ مرمت مینٹین نہ لیں، تو وہ روٹی پکانے والی مشینیں، بہت زیادہ توجہ اس پہ کر دیجئے، حقیقتاً بہت توجہ۔ عبقری کارٹون کو بہت زیادہ پھیلائیں، اس سے میں سچے واقعات ہیں، عبقری کارٹون میں سچے واقعات ہیں، اور اس سے حیرت انگیز تبدیلیاں اور فیصلے ہیں۔ شب برات آ رہی ہے ابھی، اس میں جادو، جنات، مشکلات، پریشانیوں کے لیے انتہائی طاقتور عمل ہیں، اور روحانی جانثاروں کے عمل کی بڑی دعا بھی تسبیح خانے میں شب برات میں ہوگی۔ اور 11ویں عبقری روحانی کلاس 1 فروری 2026 اتوار صبح تسبیح خانے میں ہوگی۔ عامل کامل بننے کے سنہری موقع 1 فروری۔ ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، بخت نصیب مقدر جگانا چاہتے ہیں، تو تسبیح خانے رمضان میں قیام کو ابھی سے سوچیں، ابھی سے فکر کریں، ابھی سے اس کے لیے اہتمام کریں، ابھی سے۔ اسم اعظم کا روحانی دم انشاءاللہ 11 جنوری کو ہوگا، لیکن اس دفعہ دن کے 12 بجے ہوگا، صبح سردی کی وجہ سے، ورنہ فجر کے بعد ہوتا ہے۔ کراچی گوشہ درود و سلام 28 دسمبر اتوار 1 بجے، اور عبقری کی 5ویں انٹرنیشنل روحانی کانفرنس استنبول میں 16 اپریل سے شروع ہوگی۔ 16 طالب علموں کے لیے 3 جمعراتوں والا عمل، پوری دنیا کے جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان کی ترقیاں، کامیابیاں، ملک قوم کا نام روشن، ماں باپ کا نام روشن، خدمت خلق کے لیے، طالب علموں کی ترقی کے لیے یہ عمل 29 جنوری اور 12 فروری تک کتنی جمعراتیں؟ 3 جمعراتوں یہ عمل ہوگا، طالب علموں کے لیے 3 جمعراتوں کا عمل ہوگا۔ اور ایک عرض ہے کہ اگر آپ ایک اہم اعلان ہے، توجہ فرمائیں، عبقری کے کسی بھی شعبے میں بے لوث خدمت کر رہے، آئی ٹی کا شعبہ ہے، لکھنے کا شعبہ ہے، مختلف زبانیں، انگلش، یا کوئی شعبہ مرمت کا ہے، کسی بھی شعبے میں خدمت کر رہے، اور جس کے ذریعے کر رہے ہیں، آج ہی اپنا نام اور جن سے رابطے میں ان کا نام اور پورے اپنا پتہ اور جو جس شعبے کی خدمت کر رہے، آپ ضرور ہمارے ٹیلی نار کے نمبر پہ بھیجیں، پورا اپنا ریکارڈ بنا کے بھیجیں۔ آپ کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی، اور ریکارڈز سامنے رکھ کے مشکل کشا عمل میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ اور حجویری محل میں پھر سے پتلی اینٹوں کی خدمت اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ کل بھی میں وہاں تھا،
तो जितनी भी हजवेरी महल में हमारे खिदमत वाले हैं पूरी पाकिस्तान में वहां पहुंचे और मजीद आप वहां जाके खिदमत में हिस्सा मिलाएं। अगला मरहला शुरू है, अगला मरहला शुरू है। मैं खुद परसों रात यहां रिक्शे पे बैठा, दिल्ली दरवाजे गया। दिल्ली दरवाजे रिक्शे वाले ने कहा कितने पैसे लेगा? कहने लगा आप 500 दे दे। मैं कहना महंगे हैं, मैं सफेद पोशीदा ख्याल कर मेरा। अच्छा 400 दें। फिर 400 पे उसको मैंने बेटे से कहा बेटा हम दो ही थे, मैंने कहा इसको दिल्ली दरवाजे में 500 देना, मुसलमान को अचानक खुश करना, उसका बदला जन्नत है। फिर हम वहां दिल्ली दरवाजे फिरते फिरते अंदरून कहां से ईंटें इकट्ठी कर कर पुरानी इमारतें। एक जगह गया, गधे जा रहे थे, एक बोतल के अंदर सांप बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा जी सांप निकला है। मैंने कहा बोतल को सुराख कर, इसको सांस तो आने दे, इसको अजियत ना दे या मार दे। उसकी मिन्नतें की। फिरते फिरते फिर चौक रंग महल गए, वहां अयास की कब्र पे जाके फातिहा कही। महमूद व अयास, सुल्तान महमूद गजनवी के जो, वहां गए। फिर वहां से चलते फिर दिल्ली दरवाजे, फिर दिल्ली दरवाजे रिक्शे पे बैठे। फिर रिक्शे वाले से पूछा बाबू जी क्या हाल है, कहाँ से आए, कितनी उम्र है? कि मैं राई होंदा मेरा नाम अशरफ है। तो फिर यहाँ मजंग चुंगी पे रिक्शे पे आके बैठे, उतरे। बड़ा मजा आया। खिदमत तो खिदमत होती है और खिदमत के अंदर एक दुनिया है। तो आप 20 पतली ईंट की खिदमत हजवेरी महल में जाके इसकी खिदमत में शामिल हों, क्या ख्याल? फिर मेरे साथ कुछ एक दो अहबाब थे, आगे एक कढ़ाई वाला बैठा था, अंदरून शहर दूध था, फिर दूध जलेबियां खिलाई। आप भी खाया करें दूध जलेबियां, खाया करो। अमरूद आए हैं ना इस वक्त, अमरूद खाएं। अमरूद जो बंदा खाएगा, जो कहते हैं या अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल, पेट वेट कोलेस्ट्रोल हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मेरी कोई अमरूद बाहर नहीं लगा हुआ ख्याल करना, हाई ब्लड प्रेशर का, शुगर का इलाज, टेंशन का इलाज, नींद का इलाज, जहनी दबाव का इलाज, मोटापे का इलाज, जोड़ों का इलाज, पट्ठों का इलाज, गैस बादी तबखीर मैदा। अजब अमरूद खाएं, बहुत खाएं, खाने की जगह खाएं, बहुत सस्ते हैं अमरूद, बहुत सस्ते हैं, इसलिए खाएं। ऐ अल्लाह तो हमें सेहत दे, हम तेरे बंदों की खिदमत करेंगे और तुझे इबादत से राजी करेंगे, ठीक है? और जमजम के कूलर में घोंट घोंट भर के ले जाया करें, सब में अपने घर में इस्तेमाल करें, घर में हमेशा बरकतें रहमतें हैं। और दूसरी दरखास्त है कि तस्बीह खाने में जहां मजमा आता है तोड़ फोड़ रहती है, तोड़ फोड़, वहां बिजली, सोलर, प्लम्बर, वेल्डिंग, पेंट, लकड़ी, लिफ्ट, स्पीकर, इसकी मुरम्मत चलती रहती है। और तस्बीह खाने में अपनी जिंदगियां खिदमत और इबादत के नाम पे वक्फ करें, इस खिदमत और इबादत की नीयत से वक्फ करें, या चंद दिन चंद हफ्ते यहां और चंद महीने खिदमत के लिए गुजारें। पार्किंग में ख्याल करें, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं, पार्किंग सबका हक है, राहें सबका हक है। 70 दुख एक तावीज, जिस मन्नत मुराद की नीयत से पढ़ेंगे पूरी होगी, बांटेंगे पूरी होगी। और ये अपनी सोशल मीडिया में भी ऑनलाइन मौजूद है। हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जादुई लाइब्रेरी। बाज लोग नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं कि अंग्रेज को जादू जिन्नात नजर बद नहीं होता, हमें होता है। तो ये जादुई लाइब्रेरी के अंग्रेजों को जादू ने कितना सताया और जादू कितना हुआ, और जरूर इस पे तवज्जो करें। और अभी दो चीजें मैंने अर्ज किया, 3 खिदमतें हैं। एक तो हजवेरी महल में जो यहाँ खिदमत वाले पहले कर गए या नहीं, एक दूसरे को याद दहानी कराएं, हजवेरी महल तशरीफ ले जाएं। और दूसरा अर्ज यह है कि अभी एक तो ट्रस्ट का सामान पूरा कंटेनर है, वो उतार के नीचे उसको भरना है। और नीचे रोजाना जो बिरयानी की, पुलाव की देगे रोजाना माशाल्लाह यहाँ उसके चावल ट्रकों के ट्रक आए ऊपर पहुंचाने हैं। तो इसके लिए जरूर तवज्जो फरमाएं, हिस्सा मिलाएं। बस हाथ हैं आपके, हाथ लगेंगे, क्या पता कोई खिजर खा जाए, कोई वली खाएगा, रब आपके काम बनाएगा। क़यामत का दिन होगा, बंदा जहन्नमियों के सफ में होगा, एक बंदा जन्नती होगा, कहेगा बादशाह याद है तुझे मैंने कपड़ा पहनाया था? कहाँ? कहने लगा अल्लाह से सिफारिश तो कर, ये ट्रस्ट के कपड़े। एक बंदा कहेगा याद है तुझे मैंने घोंट पानी खाना खिलाया था? कह रहे हाँ। तो ये घोंट पानी और खाना ये चावलों की बोरियां हैं,
क़यामत के दिन बंदा जाएगा, अल्लाह पूछेंगे मेरे बंदे मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया था, या अल्लाह तू पहनने से पाक है। मेरे बंदे अगर तू मेरे किसी बंदे को पहना देता तो ऐसे तूने मुझे पहनाया था। बंदा मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया था, प्यासा था पिलाया था, या अल्लाह आप तो भूख से पाक हैं। मेरे बंदे अगर तू जो किसी को खिला पिला देता तो तुझे ऐसे है जैसे तूने मुझे खिलाया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तो आज इस मैंने 18 दिसंबर को जो ऐलान किया है खिदमत खल्क फाउंडेशन का कि पूरी दुनिया में हमें अब पाकिस्तान में कहां कहां हमने क्या करने हैं और किन खिदमत के शोबों में खैर के कामों में कहां काम करने हैं, तो इस खैर के काम में पूरी दुनिया बढ़ चढ़ के और पूरे जज्बों के साथ पूरी दुनिया इसमें हिस्सा मिलाए और मुसलसल इसको तरतीब बनाए, मुसलसल इसकी तरतीब सारा साल की बनाए। अल्लाह हमारे जज्बों को सच्चाई और खास तौर पे मुझे सच्चाई अता फरमाए। दरूद शिफा पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया के मरीजों के लिए, दुखियारों के लिए, गम के मारों के लिए, मुश्किलात में हारों के लिए, पूरी दुनिया के मसाइल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लिम। अब बैठ के एक अमल शुरू करेंगे, पिछले दफा भी किया था। आप दाएं हाथ की मुट्ठी में देखें, आप नियत करें कि मेरे दाएं हाथ की मुट्ठी में अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम की ताकतें जलवे हैं मेरे दाएं हाथ की मुट्ठी में। ये नियत करेंगे और बाएं हाथ में कहेंगे मेरी बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुश्किलें, मसाइल, नाकामियां, दुख सारी इस हाथ में है। और मैं एक अमल पढ़ूंगा, अमल के बाद दाएं हाथ की मुट्ठी जिसमें अल्लाह की ताकत है गौर से समझे, फिर बाएं हाथ पे मारूंगा और इस नियत से कि सब बीमारियां, दुख, बंदिशें, तकलीफें रेजा रेजा और तहस नहस हो गई। बात समझ रहे? इस नियत से फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। ये किताबों में इसका अमल है, मुस्तनद हवालों में इसका अमल है, पूरी तवज्जो से इसका अमल है और पूरे ध्यान से इस अमल को करना है। सबूत के साथ अमल मौजूद है। तो आप दाएं हाथ की मुट्ठी का पहले तसव्वुर मजबूत करें कि अल्लाह की ताकत, कुव्वत, इज्जत, अजमत, वकार, शान और शौकत दाएं हाथ की मुट्ठी में है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का तसव्वुर मजबूत करें कि बाएं हाथ की मुट्ठी में सारे रोग, दुख, तकलीफें, मुश्किलें, मसाइल, जादू, जिन्नात, बंदिशें, नाकामियां, परेशानियां, रोग हैं। अब ये तसव्वुर जरा मजबूत करें, फिर अमल करें। जी कर लिया इंशाल्लाह। अब ऐसा है कि अब ये मुट्ठियां हो गई, अब मुसलसल पढ़ेंगे फिरौन गर्क शुद। अपनी मुसीबतों परेशानियों का तसव्वुर करके पढ़ेंगे, या अल्लाह जिस तरह तूने फिरौन को गर्क किया इस तरह आज की फिरौनी कुव्वतें, ताकतें, जादू, बंदिशें, जिन्नात, बातिल, कितमीर के फितने, ऐ अल्लाह मेरी बीमारियां, मेरे दुख, परेशानियां, कर्जे, बे औलादियां, सब नाकामियों को अल्लाह तो आज भी गर्क करने की ताकत रखता है, रखता है, रखता है। तो इस नियत से फिरौन करेंगे। जब मैं फूंक मारूंगा फिर हाथ को हाथ पे मारेंगे और इस नियत से कि सारी चीजें पांच पांच टुकड़े टुकड़े तहस नहस हो गई। पढ़े फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद।
فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد. بہت طاقتور عمل ہے، یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے. یہ فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد، یہ لفظ کتابوں میں موجود ہے، اکابر اولیاء کی مستند موجود ہے. ناواقفیت کی بنیاد پہ بعض اوقات بندہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے ہیں.